सोनाली जी, आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत मंच पर। और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक परिचय दें, जिससे कि लोग बाग जो है आपको ठीक ढंग से समझ पाएंगे। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी से जो एसोसिएशन वगैरह रहा है, इवन दैट कुड बी आई मीन प्रॉपरली टोल्ड। आपका स्पेशलाइजेशन, आपका ऑडियो फील्ड में जो दखल है, you can elaborate that part during your introduction. आपका माइक्रोफोन ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। Yeah. Hello, sir. This is a very small town girl. I hailed from Hinganghat 14 years back. Hinganghat is a place which is at Wardha district, and I wanted to come and wanted to be an RJ. So I started 14 years back with Lokmat as an reporter. And then 14 years I worked in television, radio, and print media, and along with the digital media as well. So recently currently I'm working with Big FM 92.7 Big FM as a cluster programming head. I'm handling 3 stations: Nagpur, Kolhapur, Solapur. So I'm handling all the programming which is happening in Big FM in the 3 cities, taking care of what is going on air, and what should go on air, and also take care of the music and everything. So I'm responsible person for whatever going on air. Previous to that, I was with the Bolly 102.9 FM, which was based at Washington DC. My shows were going on in Washington DC, Boston, and Virginia. इससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिस्पॉन्स एडिटर थी, और वहां पर आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्स एडिटर। उससे पहले मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस और कुछ अपने वेंचर्स शुरू किए थे, जिसके तहत मैंने तकरीबन 100 डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट्स और ये सारी चीजें करी है। So this is the journey. I started as a radio jockey with Red FM. I worked as a professional radio as well, and handle team. And this is the time I am working on Voice Villa as an founder. And I wanted to work in the field of voice. I wanted to experiment in the field of podcasts, web radios, and these things. That's why I started my own venture, which is called Voice Villa. So this is the small introduction. मुझे ख्याली पुलाव बड़े पसंद है खाने में, तो मुझे वो पकाना बड़ा पसंद है, तो वो मैं पकाती हूँ और अच्छी चीजें वॉइस के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से परोसती हूँ लोगों को। सो मुझे खाना और पकाना, ख्याली पुलाव दोनों पसंद है। देखिए, किसी भी चीज को यदि अपन करना चाहे तो उसका पहले कॉन्सेप्शन जो है ना वो माइंड में होता है। तो ख्याली पुलाव जिसको आप कहते हैं, हम उसे कहेंगे फाउंडेशन। हाँ। बिना ख्याली पुलाव के वास्तविक पुलाव पक ही नहीं सकता है। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पकवान हो, या कोई दूसरी चीज हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, इट ऑलवेज ऑपरेट एट द 2 लेवल। 1 लेवल इज ख्याली, या जिसको कहते हैं कि मेंटल लेवल, and the second level, then mental level, is executed to capture and become physical level. That is called the physical manifestation of your vision, your opinion, your thinking. Absolutely. So ख्याली पुलाव जो है is very very important, और बिना ख्याली पुलाव के वास्तविक पुलाव बन ही नहीं सकता है। True, sir. So actually, I am still filmy. I have a lot of filmy attitude in my style of living life. I take it very seriously, but I don't take my life very seriously, because leading the life very casually, I feel this is the life. That's it. This is, I think, enough for me. Basically saying that carefree
it means you are manifesting yourself as it is. There's no camouflage. आप जो है अपने आप को किसी चीज से कवर अप नहीं कर रहे हैं, किसी चीज से मास्क नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर अलाउइंग योर नेचुरल इंस्टिंक्ट टू मैनिफेस्ट. एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट हमेशा जो है हर किसी की, बिकॉज नेचुरल इंस्टिंक्ट इज डिक्टेटेड बाय आत्मा, सोल. सो इट इज ए वेरी प्योर. Basically, problem start when we mask it, when we camouflage it, when we try to project something which it is not. So, staying carefree, staying natural, staying with the instinct is a requirement of the day. Thank you, sir. Thank you very much. I think it gives me the life, actually, and this is the best oxygen. That's the way I live, I suppose. I think, and that's why I chose radio to work, and that's why I chose to be into the field of entertainment, in the field of creation. So, अब क्रिएशन एक बड़ा वर्ड है जिसको मैं महसूस करता हूं कि आज के लोगों ने उसको काफी विभत्स कर दिया है. आप जैसे अज्यूम करिए कि एक गाना देखिए कि चिपकाए लो यो फोटो जो है ना फेविकॉल से, इसमें मुझे कहीं भी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है. और एंड मुझे जो है उसमें विभत्सता दिखती है. यदि 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 आप जो है ना सही क्रिएटिविटी चाहें तो तुलसीदास जी के उसको देखिए. मैं हमेशा उसको बहुत प्यार से याद करता हूँ, जिसमें कहा गया है कि राम का रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबई सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं. मतलब भगवान राम जब वो वाटिका में जाती है पूजा करने के लिए, उसी समय जो है वशिष्ठ गुरु जी के साथ जो है राम और लक्ष्मण भी और सब लोग वहां पहुंचे रहते हैं, राइट. एंड राम की जो इमेज है इट इज फॉलोइंग इन द कंगन, आई मीन, एंड कंगन के नख की परछाई में वो राम की छवि को देखती हैं और वो सब कुछ भूल जाती हैं, उसमें ही बिल्कुल वो हो जाती हैं. सो दैट इज कॉल्ड द रियल क्रिएटिविटी. ट्रू सर, ट्रू. आई मीन, एंड बेसिकली जहां तक क्रिएटिविटी का सवाल है, मुझे बहुत जोर से लगता है कि विभत्स चरित्र के लोग जो है क्रिएटिविटी सेक्टर में ज्यादा डोमिनेट कर गए हैं, और उनका चरित्र चूंकि दोगला है, तो आप ये देखिए हर जगह वो दोगलेपन की ही छाप छोड़ रहे हैं. हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रहे हैं. जैसे आदि शंकर जी का जो है ना अभी वो सीरियल और वो सब चीजें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है ये गंगा है. विवश चरित्र के लोग विवशता को परोस रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे चीज को परोस रहे हैं. और जब कभी भी कोई ये बात कहता है कि देखिए साहब टीआरपी इज ए इशू, तो मैं हमेशा कहता हूं कि टीआरपी का आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. मैं उनको हमेशा एग्जांपल देता हूं रामायण का. जब जो है रामायण, बहुत सारे टेलीविजन भी नहीं हुआ करते थे, लोग एक जगह इकट्ठे होकर अभी भी आप देखेंगे तो रामायण वाज ऑन द हाईएस्ट टीआरपी. महाभारत और रामायण वापस जब कोविड टाइम में लगा था, लॉकडाउन टाइम में, इट वाज द रिसर्च वी हैव डन एंड इट वाज ऑन द हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग्स. देखिए, टीआरपी इज कैप्चर्ड थ्रू द डिवाइस, राइट. एंड हम लोग इतने नालायक और बदमाश और मक्कार लोग हैं कि हम डिवाइस को धोखा देना जानते हैं. जो अर्णव गोस्वामी वाला जो केस हुआ था, उसमें उस डिवाइस को ही धोखा देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है पैसा देके उनका डिवाइस ऑन रखा जाता था. तो इसमें दो तरीके की वो थी. एक तो जो कैप्चर कर रहा था, उससे उस इंफॉर्मेशन को लिया गया कि कौन कौन जो है कस्टमर ऐसे हैं जिनका, क्योंकि इट इज ए सैंपल बेसिस, इट इज नॉट 100%, राइट. सो दैट इंफॉर्मेशन वाज कैप्चर्ड कि कौन जो है ना इसको किसकी कैप्चर हो रही है, और फिर उसको कांटेक्ट करके उसको पैसे देके उसका टेलीविजन हमेशा ऑन रखा जाता था. एंड दैट्स हाउ द टीआरपी वाज मैनिपुलेटेड. तो ये तो जो टीआरपी अभी आप कहते हैं, आई डोंट रियली प्लेस लॉट ऑफ रिलायंस ऑन दैट. मैं उसको बहुत विश्वास नहीं करता हूं. मेरे लिए जो टीआरपी है, जब जो है लोगों की अपनी बिटिया की विदाई हो रही है
और वो कह रहे हैं कि हम रामायण देखने के बाद विदाई करेंगे, दैट इज द टीआरपी। एग्जैक्टली, सड़कें लोग खाली हुआ लोगों करती थी। लोगों की जो है मैयत सजी हुई है, और लोग बाग कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी तब ले जाएंगे जब जो है ना रामायण खत्म हो जाएगी। दैट इज द एब्सोल्युटली ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ टीआरपी। ट्रू ट्रू। बाकी आजकल के जमाने में तो जो है हर चीज फेक हो गई है। जो लड़का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंक पा जाता है, लोग बाग उन्हें घूस दे के, पैसे दे के उनको झूठा कहते हैं कि साहब जो है ना ये हमारे यहाँ की कोचिंग में था, यहाँ था, वो था। तो लोग बाग जो है धूर्तता तो खून में समा गई है, पॉजिटिव एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी और नेगेटिव एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो जो टीआरपी है, जब मैं टीआरपी के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सम अदर इंडिकेटर्स वुड आल्सो बी देयर विच कैन नॉट बी बिफुल्ड। और जब रामायण, महाभारत, इस तरीके के सीरियल्स दे आर अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ द क्राउड, बिकॉज अभी आप देखेंगे सूर्यपुत्र कर्ण का आप जो टीआरपी देखिए, वेरी हाई टीआरपी इज गोइंग, जबकि वो इट वाज क्रिएटेड इन 2016, राइट? और अभी बहुत जोर से उसकी टीआरपी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल है। और उसमें मैंने एक चीज और भी अच्छी देखी है कि कृष्ण भगवान जो है ना किसी भी चीज को शुरू करने के पहले एक कहानी कहते हैं। वो कहानी में बहुत बड़ा संदेश रहता है। आई फील दैट इज अ रियली वंडरफुल वे ऑफ क्रिएटिंग एनी सीरियल, जहां पे कि हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि हम पब्लिक को संदेश क्या दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये दोगले चरित्र के लोग ये दोगली चीजों को परोस रहे हैं, अपने दोगले चरित्र को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेम टीआरपी को दे रहे हैं। प्रॉब्लम टीआरपी की नहीं है, प्रॉब्लम उनके भेजे की है, प्रॉब्लम उनके दिवेलियापन की है, पर प्रॉब्लम ऑफ देयर डिबाउच करेक्टर। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जो है कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। इट ट्रू। इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। हम जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी के डायरेक्शन में जैसे जाना चाहिए वैसे नहीं जा रहे हैं। मैं सोनाली जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है इस गैप को फिल करें और वो चीज परोसें जिसकी आवश्यकता है, जो चरित्र मैं निर्माण के लिए आवश्यक हो, जो देश के निर्माण के लिए आवश्यकता हो। मैं थोड़ा सा हटके बात कह रहा हूं। अभी देखिए कोरोना को लेके क्या क्या गड़बड़ नहीं हो रहा है। आपने अभी सुना होगा कि नोएडा के अस्पताल में यूपी गवर्नमेंट ने छापा मारा और वहां पर जो है एक स्कैंडल पकड़ा गया कि मजदूरों को 5,000 रुपए देके वहां भर्ती कराया जाता था और हर दिन का 1,000 रुपए दिया जाता था, और उनका फर्जी जो है कोरोना पॉजिटिव दिखा के उनको एडमिट रखा जाता था। और वो जानकारी चूंकि अब देना कंपलसरी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो सभी बेड को फुल दिखाया जाता था। और जब भी कोई व्यक्ति 2 या 3 लाख रुपए कह के पहुंचता था तो उसको जो है ना एक व्यक्ति को बाहर करके उसको जो है ना एडमिट कर लिया जाता था। जो व्यक्ति एडमिट था उसको रेमडेसिविर और बाकी जो है ना इंजेक्शन वगैरह वो लगाए दिखा के वो भी स्टॉक में रखे जाते थे, और फिर ब्लैक में जो है ना बहुत बड़ी कीमत पे वो दिए जाते थे। आपने ऑक्सीजन वाला स्कैंडल सुना हुआ है, सब सब स्कैंडल सुना है। जी। इसका मतलब है कि हम दिमागी तौर पर जब पूरी जो है भारत जो है इस जंग से लड़ रहा है और एक कम्युनिटी स्प्रेड का जो है ना खतरा हो गया है, जहां पर कि बेड अवेलेबल नहीं है, जहां पे कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहां हमारी दुष्टता जो है वो दम नहीं ले रही है। वो जो है एक से एक दुष्टता के कृत्य जो है देखने में आ रहे हैं। अभी स्कैंडल देवास में पकड़ा गया, बहुत सारी जगह पे पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम में से बहुत सारे लोग प्योर दुष्ट हैं जो हर चीज में पैसा कमाने का कुछ ना कुछ अवसर खोज लेते हैं, और वो दुष्टता जो है हर तरफ विद्यमान है और उस दुष्टता का बोलबाला हो गया है। कई बार हम भय सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं जिससे कि हम उसका दोहन कर पाए। मैंने जो है मुझे कई जगह से मालूम पड़ा था, तो फिर एक लेमन थेरापी के बारे में। तो उस लेमन थेरापी को जब मैं खुद जो है ना कोरोना पॉजिटिव था और मुझे टेम्परेचर 104 था, उस समय हमने उसको यूज किया अच्छा। और 2 घंटे के अंदर हमारा जो है टेम्परेचर 100.2 पे आ गया। और बाय मॉर्निंग
my temperature came down to even below normal. जबकि जो है उसका अटैक बहुत हैवी था, क्योंकि मुझे पूरे मुंह में ब्लिस्टर वगैरह आ गए थे, और तो दैट रिफ्लेक्ट इट वाज ए वेरी वेरी सीवियर अटैक। और हमारा ऑक्सीजन लेवल वाज एट 92 एंड मैं इसके बावजूद भी लेमन थेरापी के बाद हॉस्पिटल नहीं गया। बट जब मेरी पत्नी और बिटिया ने काफी दबाव लगाया तो हमने नेक्स्ट डे हम गए, और जैसा मैं जानता था मेरा नेगेटिव ही निकला, बिकॉज वी हैव डन दैट लेमन थेरापी। अब देखिए दुष्टता की पराकाष्ठा है। कल एक न्यूज मुझे किसी ने भेजी, पेपर कटिंग, जिसमें कहा गया कि एक टीचर को जो है ना उसने लेमन थेरापी ली अपने नोस्ट्रल में, और वो रास्ते में हो गया, उसकी डेथ हो गई, और उसका जो है ब्लेम लेमन थेरापी पर डालने की कोशिश की गई है। ये कहीं पे इको आ गया, हाँ, टेक केयर ऑफ इको, हाँ। सो ये कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि सिस्टम में दुष्टता बहुत है। अभी इंदौर के पेपर में छपा था कि स्टीम लेने के नुकसान क्या है। इसका मतलब है कि जिस भी चीज से आपको फायदा हो सकता है, हमारे विघ्न संतोषी लोग जो इस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं, वो उसके बारे में निश्चित तौर पे भ्रामकता फैलाएंगे। देखिए अब जैसे मान लो थोड़ा सा लेमन जूस के बारे में इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना इस समय पीक पे जा रहा है, और लोग बाग जो है ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। जो रेमडेसिविर की बात की जा रही है, दैट इंजेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डॉक्टर्स एडमिटिंग फॉर देमसेल्फ, इट इज हैविंग नो प्रूवन यूटिलिटी। लेकिन वो इंजेक्शन जो है ना 50-50 हजार में, जिसकी MRP 800 रुपए थी, वो उसको जो है 5,600 में बदल दिया गया MRP को, और अब वो 50-50 हजार 60-60 हजार में ब्लैक में बेचा जा रहा है। बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, चारों तरफ स्कैंडल हो रहे हैं। उसमें यदि हम मात्र 2 बूंद या 3 बूंद लेमन की दोनों नाक में डाल देते हैं, तो लेमन जो है कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं है जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, राइट, जिससे किसी को नुकसान हो जाए। लेमन में जो सेट्रिक एसिड होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ कोरोना। तो वो 2 तरीके से फायदा करता है। एक तो इट इज, यदि वो उसकी रीच में कोरोना आ गया, राइट, तो वो कोरोना को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो मारता नहीं है उसको, उसके आउटर मेम्ब्रेन को वर्स्ट कर देता है, जिससे वो इनइफेक्टिव हो जाता है। और ये हम सब लोगों के संज्ञान में है कि चाहे अपन अल्कोहल से वो कर लेते हैं तो वो जो है ना उसकी आउटर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, यदि हम साबुन से रगड़ के साफ कर देते हैं तो भी उसकी आउटर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल कोर्स में जो लेमन जूस है स्वस्थ व्यक्ति लेगा, मतलब नाक में 2-2 3-3 बूंद जो है ना लेमन जूस की डालेगा स्वस्थ व्यक्ति, तो उसके अंदर वाले इलाके में जो भी बलगम टाइप की चीज है वो सब निकल के बाहर आ जाएगी और उसे बहुत अच्छा फील करेगा। तो वेरी वेरी हेल्दी व्यक्ति शुड आल्सो टेक द लेमन थेरापी। जब भी आपको जाना लगे कि एक्सपोजर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द टेस्ट, वी शुड गो फॉर द लेमन थेरापी। ओके। दूसरी बात जो कहा गया है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोलिसिस से आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, आज मैंने इसका अपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे आज जाइए, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। वो किसी टीचर ने और उसके स्टूडेंट ने जिसने बनाया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसका जो वीडियो था, तो मुझे लगा इट इज वेरी रिलेवेंट वीडियो। फिर हमारे एक IPS ऑफिसर हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है क्राइम फ्री भारत के। तो बेसिकली इट इज ए फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, टेक्निकल हेड्स हैं, लीगल हेड्स हैं, मीडिया एंड पब्लिसिटी हेड्स हैं। तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब,
Okay. और ही इज ए पर्सन ऑफ ए साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस मॉडल को और अच्छा करके जरा बनाइए, तो वो उन्होंने उसको बना लिया है, शायद आज उसका वीडियो बना के भेजेंगे वो। और वी वुड लाइक एवरीबडी शुड कीप दैट रेडी एट होम, क्योंकि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है। आप जो है ना, जो कास्टिक सोडा है उसको डाल दीजिए, ठीक है ना, दैट विल बी यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एंड Okay. इवन नॉर्मल कोर्स में सप्ताह में एक आध दिन, या हम तो कह रहे हैं रोज भी कर सकते हैं, वी कैन यूज इन अवर बेडरूम, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 ट्रीज। तो आपने फुल्ली ग्रोन 20 पेड़ जो है ना अपने बेडरूम में लगा दिए हैं, उतनी ऑक्सीजन जो है ना ये आपको देगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्यादा। जानकारी है। अच्छा, तीसरी बात, इसमें यूके के एक डॉक्टर ने बड़ी जिम्मेवारी से एक वीडियो के माध्यम से कहा है, और वो यूके का डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूके का नाम इसलिए ले रहे हैं कि यूके में लॉ बहुत रिगरसली इन्फोर्स होता है, और यदि मान लो कोई गलत रिमार्क करता है या गलत बात करता है, तो वहां पे 2 मिनट में लिटिगेशन हो जाता है और उससे कंपनसेशन मांगा जाता है, राइट। Okay. तो इसलिए यूके का डॉक्टर का जो है ना बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वहां पे कोई इररिस्पॉन्सिबली यहाँ बात पे नहीं कर ऐसी, सकता। हाँ हाँ, ये ट्रेंड नहीं है वहां पर। हाँ, या वहां पे इररिस्पॉन्सिबली बात की, दूसरे दिन आपको लिटिगेशन कर दिया जाएगा, आप जेल में होंगे, आपसे आपसे 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ टाइप का जो है ना कंपनसेशन मांगा जाएगा। सो यूके में ऐसे फालतू की बात कोई नहीं करता है, इररिस्पॉन्सिबल बात जैसे इंडिया में होता है कि जिसका जो दिल करता है वो मुंह उठा के बात करने लग जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कहीं अच्छी बात हो रही है तो उसको काटने का भी जो है ना कुछ उल्टी फालतू की बात कहना चालू कर देते हैं, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो डॉक्टर है, व्यक्ति ना कहें, उस डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि साहब 85% केसेस में कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, राइट। उसको जो है ना लो ग्रेड फीवर भी होगा और वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा, और कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा, किसी में तो फीवर भी नहीं आएगा, राइट। अब 15% बचे केसेस में, और उसने 2 कैटेगरी में बांटा। एक को उसने कहा कि कोबरा का, और दूसरा कहा पाइथन का। उसने कहा कि जिसको कोबरा टाइप का जो है ना छाप काटता है। कोरोना जो इफेक्ट करेगा, कोरोना का वायरस इफेक्ट करेगा, जो कि कोबरा टाइप का है। देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना। ओके। तो उस वाला वो है, तो वो 6वें दिन आपको बहुत जोर से फीवर देता है, एंड फीवर विल बी 102 to 104, राइट। एंड इट इज ए इंडिकेशन कि अब जो है कोरोना आपके फेफड़े में घुसने वाला है। ओके। और डॉक्टर ने कहा है कि साहब जो है, यदि आपके घर में आग लग जाए तो आप जो है सभी कमरों में आग फैलने देंगे या आग को बुझा देंगे। तो उसका कहना है कि साहब इसमें स्टेरॉइड जो है की जरूरत होती है। उसने कोई मैट लैब ऐसा कुछ जो है ना नाम भी लिया है, आई एम फॉरगेटिंग, एंड द MRP इज सम 4 रुपीज, एंड कोई कुछ इंजेक्शन का भी बताया है कि कुछ स्टूडियो के उसके तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन है जो कि 10 रुपए के आते हैं। सो यदि आप जो है अंडर द मेडिकल एडवाइस वो स्टेरॉइड का जो है टैबलेट ले लेते हैं, तो दैट विल एक्ट एज ए पुटिंग ए वाटर। अब ये पानी क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। बेसिकली कोरोना को 10 दिन में मर जाना है, राइट। कोरोना जो है आपकी इम्यूनिटी को प्रोवोक करके फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। दैट फाइब्रोसिस इज बीइंग क्रिएटेड एज ए रिस्पॉन्स टू कॉन्कर ऑन कोरोना। कोरोना पे विजय पाने के लिए आपका सिस्टम ये सब धंधा करता है, आपका सिस्टम कर रहा है, राइट। अब यदि एज्यूम करिए कि हम कहें कि हम ये धंधा नहीं करेंगे, कोरोना तो अपने आप 10 दिन में इनफेक्टिव हो जाना है, राइट। तो स्टीरियो इज एग्जैक्टली suppressing our own immunity and not allowing to make fibrosis. That is the only thing which being done. तो यदि कोई ये पकड़ ले कि 6वें दिन बहुत तेज बुखार आ गया है, तो यदि वो नॉर्मल डॉक्टर के हिसाब से कहेगा तो जो है उसको स्टेरॉइड ले ले,
और मैं उससे कहूंगा कि वो लेमन की ड्रॉप भी ले, और चूंकि वो फेफड़े में घुसने की संभावना हो रही है तो लेमन को जो है ना वाटर में डाल दिया जाए और उसका स्मोक लिया जाए, सो दैट लेमन जूस वुड बी और लेमन वेपर वुड बी इन पोजिशन टू रीच लंग्स। अब अपन बात लॉकडाउन की करें और कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के हर नागरिक को कोरोना हो गया, 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल मान लें, सभी जो है ना 137-35 करोड़ लोग जो है ना, सब लोग 2-2 बूंद लेमन की डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? स्वस्थ लोग भी डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कहां कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा? जब 100% लोग ही कवर हो गए तो फिर कम्युनिटी स्प्रेड कहां बचा? और रिमेन वॉचफुल। यदि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीजन अपने घर पर ले लीजिए, राइट? ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से जो है ना ऑक्सीजन नापते रहिए आप, ठीक है ना, एंड रिमेन अटेंटिव। टेम्परेचर लेते रहिए। और यदि आपको लगता है कि इट इज ए टाइम कि हमें ये कोबरा ने कर लिया है और वी वांट टू जो है ना स्टेरॉइड का सपोर्ट लेना जरूरी है, तो डॉक्टर के एडवाइस के तहत स्टेरॉइड का सपोर्ट ले लें। लेकिन एक बात अपन को समझना पड़ेगी कि लोग बाग इतने दुष्ट हैं कि दे विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, एंड कुछ ना कुछ भ्रामक खबर छपवाएंगे। चूंकि इसमें इतना बड़ा मनी गेम है तो दे वुड नॉट लाइक कि ये इतनी आसान सी चीज से यदि हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं तो दे विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। वो साइंटिस्ट को घूस देके फर्जी रिसर्च पेपर भी छपवा सकते हैं। अखबारों में छपवा लेना छोटा मोटा तो बहुत छोटी सी बात है। और ये आपने देखा है कि हमारे साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, वो पैसा लेके कभी कहते चॉकलेट अच्छी है, कहते कभी खराब है, कभी कहते कॉफी अच्छी, कभी कहते खराब है, कभी ये अच्छा कभी वो अच्छा। ये तो यही नहीं मालूम पड़ता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, जो पैसा दे दे वैसा हो जाए। ये तो वैसा लग रहा है जैसे जो ब्लैकमेल करने वाले पेपर होते हैं जो कहते हैं कि अगला जो है विवरण अगली किस्त में, और सामने वाले ने पैसा दे दिया तो अगली किस्त कभी नहीं आती है। तो हम दुष्टता के उस दौर से गुजर रहे हैं कि आदमी को यह समझ में नहीं आता है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। तो मैं चाहूंगा आपकी क्या रिएक्शन है ये सब बातें सुन के। और इसके बाद जो है वी विल स्विच ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड वी विल स्टार्ट अफ्रेश रिकॉर्डिंग। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे एंड पे आती है तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। जी, आपने बहुत ही सटीक बातें करी हैं और बहुत ज्यादा, क्योंकि चूंकि मैं थोड़ा सा, मैं जिस ब्रांड में अभी काम करती हूँ उस ब्रांड के बारे में आपको बताती हूँ। आई एम वर्किंग इन बिग एफएम। बिग एफएम की हमारी टैगलाइन है, धुन बदल के तो देखो। और मैं इस दावे के साथ इसे कह सकती हूँ कि अमंग्स्ट ऑल द रेडियो स्टेशन वी हैव अ वेरी वैल्यू एडेड कंटेंट। जिस कंटेंट में कल्चर है, जिस कंटेंट में एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, जिस कंटेंट में क्या सोसाइटी के लिए सही है, क्या सोसाइटी के लिए सही नहीं है, इसके मापदंडों पर भी हम बात करते हैं। एंड वी गिव लॉट ऑफ वैल्यू एडेड कंटेंट। सो हमारी टैगलाइन ही खुद बताती है, धुन बदल के तो देखो। तो हम कहाँ धुन बदल सकते हैं जिंदगी की, और किस तरह से धुन बदल सकते हैं, ये सारी चीजों पर हम काम करते हैं। बिग एफएम में हम जैसे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, अगर आप सुने होंगे तो आप उसे सराहेंगे। अब नीलेश मिश्रा की अगर कहानियां आप सुनेंगे तो आप उन्हें सराहेंगे। अगर आप भावना सोमैया की फिल्म की रिव्यू सुनेंगे तो आप उसे फैन बन जाएंगे। और लोकल लेवल पे मैं जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। बिग एफएम के माध्यम से जितने सोशल एक्टिविटीज है, जैसे कोरोना टाइम में मैं भी योद्धा हमने, जैसे अभी 1 मई है तो हमने एक कैंपेन चला, मैं भी योद्धा। एंड बहुत सारे कैंपेन्स है, जैसे मैंने आयुर्वेद डॉक्टर जो आप बात कर रहे हैं उन बातों को मैंने देखा कि एक गरीब सैनिटाइजर जो 2000 रुपए कमा रहा होगा, उसे 500 रुपए 400 रुपए का महीने का सैनिटाइजर पुराएगा क्या? क्या वो अफोर्ड कर पाएगा सैनिटाइजर? मतलब ये हमारे लिए सैनिटाइजर है, हम लाकर आते हैं एक साधारण सा, एक 400 450 रुपए का, मैंने तो 2000 का लेकर आई थी, बट 450 रुपए का सैनिटाइजर जो 2000 रुपए कमाता है उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो।
So what should be the things? How should I cater to the society? So I thought of, then I contacted with a lot of Ayurvedic doctors. They told me that गर्म पानी और हल्दी का पानी भी आपके सैनिटाइजर का काम कर सकता है। अगर आप हल्दी का पानी, मतलब उबाल कर रख देते हैं और आप गर्म पानी से हाथ धोते हैं और वही हल्दी वापस आप हाथों पे मलते हैं, तो आपका वो सैनिटाइजर का काम करेगा। यानी कि I have given them the cost effective sanitizer, and I could tell them, the society, कि नहीं, you can use this, can be the substitute that can be used, and how to lead the life, and so many campaigns we have done around that. मुझे तो लगता है कि लेमन का पानी जो है ना would be very effective. Yes, so I have taken, because I don't have जो लेमन जो है, जो लेमन बदन के अंदर जाके कोरोना वायरस के जो है ना मेम्ब्रेन के उड़ा देता है, वो बाहर भी उड़ा देगा, क्या दिक्कत है? Exactly. तो हम जो है ना लेमन को डाल के उसको जो है सैनिटाइजर की जगह लेमन का यूज करें और खुश रहें। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, है ना, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं वो चीज बोलूं, इसीलिए मुझे जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से ही बुलवाना पड़ता है। आप तो ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिनके पास अथॉरिटी है, हाँ, व्हाई दे आर सो स्लैक, राइट। हमारे जो अभी मैंने जैसे कहा था कि हम पीपी सिंह साहब से अपने जो हमारे क्राइम फ्री भारत के पंजाब राज्य के जो है प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। वो हम लोगों की बातचीत जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और तो उसमें बात ये हो रही थी कि जो है लेमन इफेक्टिव है नहीं है, इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो ही केम आउट विद वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ही सेड कि मैथिली यार बड़ा सिंपल सा काम है, आप एक की जगह दो जो है ना बर्ड डालिए, और एक बर्ड को जो है ना एडिटिव टेस्टिंग को वे कर दीजिए और दूसरे को लेमन में डुबो दीजिए और टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए। एक में पॉजिटिव आएगा, दूसरे में पॉजिटिव नहीं आएगा। इट इज ए टेस्ट दैट बिकॉज ऑफ द लेमन कोरोना कुड नॉट सर्वाइव। ट्रू। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोगों की, हम किस चीज से डरे हुए हैं? Why are we not really doing experimentation? आपको जान के ताज्जुब होगा सोनाली जी कि that I have written to the Prime Minister also कि इतनी साधारण सी बात है, इसको टेस्ट करने के लिए 10 मिनट चाहिए। Why our system is not jumping on it? वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो डर पैदा कर सकता है, वो कर सकता है अनअथॉरिटेटिवली और नीम हकीम। कई बार मुझे बड़ा तरस आता है एलोपैथिक डॉक्टर पे जब वो कहता है नीम हकीम खतरे जाम, और मुझे वो एलोपैथिक डॉक्टर नीम हकीम लगता है। आप ये बताइए, आपकी 80% डिसीजेज जो है वो ऑटोनॉमस डिसीजेस की कैटेगरी में आ गई हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है, जिनको आप जो है ना सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे हो, और यदि उसके 10 सिम्टम है तो आप 10 दवाइयां दे रहे हो विदाउट रियली बॉदरिंग कि वो 10 दवाइयों के आपकी बॉडी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। यू रिमेंबर कि वायरल फीवर होता है, और उस वायरल फीवर में वायरल कैन नॉट बी किल्ड बाय द एंटीबायोटिक। आप जो है कि साहब वो इम्यूनिटी और फलाना और कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आप खांसी में भी 8-8 10-10 दिन का जो है ना एंटीबायोटिक दे रहे हो। एंड हमारी बॉडी जो है ना, इट इज ए बायोटिक बॉडी। इसमें जो है जो बहुत सारे या मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं जो बॉडी को मदद करते हैं, दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया। आप एंटीबायोटिक लेके जो ट्रिलियंस लोड ऑफ योर फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको मार रहे हो, और उनको मार के हमको ये शिखंडी बना दे रहे हैं, हमको ये निष्प्रभावी बना दे रहे हैं। इसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। ये इनके प्रोटोकॉल चैलेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? सर, आप अगर देखते हैं तो दामले बुआ करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, दामले बुआ आयुर्वेदाचार्य है और काफी बड़े लेवल पर उनका काम है। तो वो काफी सजेस्ट करते हैं, जैसे और क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे संस्कृति से बने मतलब आई हुई वैद्यकीय प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने वो अपने यूट्यूब चैनल से, मैंने इंटरव्यू भी किया है उनका। सो जैसे हवन, छोटे छोटे हवन, हाउ टू अभी हम सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइज करने के तरीके, आप अगर कंडे के साथ में अगर आप
नीम की पत्ती जलाते हैं घी के साथ में, तो भी आपका घर सैनिटाइज हो जाता है। सो ऐसी बहुत सारी, कभी तिल आप तिल और घी जला दे तो उससे भी आपके घर को सैनिटाइज किया जा सकता है। सो दीज तो आर द वेज। ये विद्वान लोग कहेंगे ये तो सुपरस्टिशन है। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन ये मेरा हाँ, ये कहना है, क्योंकि हमारे नहीं, हमारे साइंटिस्ट जो है इसको जो है साइंटिफिकली प्रूव करके जर्नल्स में क्यों नहीं छापते हैं? हाँ, हाँ। तो अभी अभी एक्चुअली ये बहुत गहन चर्चा है, और मुझे लगता है ये जो चर्चा है, मतलब इसको ये एंडलेस है अभी, क्योंकि नहीं, इसे अब लेकिन ये बिल्कुल एंडलेस नहीं है। ये हाँ, बहुत ही सामयिक है, जहां एक एक हॉस्पिटल में 20-20, 25 लोग जो है ना एक दिन में मर रहे हैं फॉर वांट ऑफ द ऑक्सीजन। जी, हमारा एक पुलिस का ही, उसकी मदर एडमिटेड थी, तो वो वहां पे 10-12 दिन था, और वो रोज रोता था कि सर यहाँ पे 15 लोग मर गए, आज 20 लोग मर गए हैं, और बोले मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एंड ही इज फीलिंग दैट पीपल, जैसे पका आम टपकता है ऐसे लोग बाग टपक रहे हैं वहां पे। एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली। हाउ इंसेंसिटिव आर वी? क्या लोगों को नहीं मालूम है कि हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीजन बन सकती है? क्या ये नहीं मालूम है कि दे आर ऑक्सीजन एनरिचर एंड ऑक्सीजन एनहेंसर दैट कुड बी पर इसमें तो फैब्रिकेटेड जैसे इन दैट? आपने कहा, इससे तो काफी बिजनेस ही इन्वॉल्व होगा ना। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की लाशों पे आप लोग अपना बिजनेस करोगे, वेरी लोग बाग मर रहे हैं, इनसेंसिटिव लगता है ये आप चीज। बिजनेस करेंगे, आप जो है ना भय पैदा करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं जहां कहीं भी, दैट्स व्हाई समटाइम आई से आई एम एंटी अवेयरनेस। आई से अवेयरनेस समाधान के साथ लेके आइए। यदि एग्जैक्टली, आप सॉल्यूशन समाधान ओरिएंटेड अवेयरनेस यदि आप होना चाहिए। समाधान लेके नहीं आ रहे हैं, तो अवेयरनेस से आप जो है भय पैदा कर रहे हो, और भय जो है ना वो व्यवसाय में पैदा कन्वर्ट किया जा रहा है। हमें इस भय को व्यवसाय में नहीं बदलने देना चाहिए। So whenever we are coming with some certain information, we should come a full methodology and full samadhan. ट्रू, ट्रू। And let me tell you, आपके समाधान को ये दुष्ट लोग जो है पैसा देकर ऐसे हवा में उड़वा देंगे। ये किसी भी पेपर में कुछ भी छपवा सकते हैं, ये किसी भी जर्नल में कुछ भी छपवा सकते हैं। हम लोग इतने बिके हुए लोग हैं कि थोड़े से पैसों के उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने नाम से एक आर्टिकल लिख देंगे। ये मुझे लगता है कि ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। भगवान इनको तो जो है ना शायद नरक से भी और कोई अलग कैटेगरी बनाना पड़ेगी इन दुष्टों के लिए। सर, इसका क्या समाधान हो सकता है, किस तरह से, जैसे समाधान ये सोल्यूशन है कि ओरिएंटेड? अच्छे लोग संगठित हों, और जो ये डिबाउच करेक्टर के लोग हैं, जो कि मतलबी लोग हैं, जो कि अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको घेरें और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। इनके इनके जो इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर किया जाए, उसको वैलिडेट किया जाए, इनको कॉर्नर किया जाए। जो फर्जी साइंटिफिक पेपर लिख रहे हैं उनको घेरा जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। दे शुड बी आस्क्ड टू द एक्सप्लेन द थिंग्स। दे शुड आस्क्ड टू जो है ना प्रूव देयर रिसर्च वर्क। पैसे लेके वो रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते हैं। अभी देखिए, आपकी मेडिसिन काउंसिल जो है, दुनिया में हर किसी को नहीं मालूम है क्या कि ये लोग जाते हैं, पहले 25-30 लाख रुपए ले लेते हैं, इनके सामने जो है ना पूरा इंस्पेक्शन का ड्रामा किया जाता है। फर्जी जो है ना गेस्ट जो है ना लेक्चर दिखाए जाते हैं, फर्जी बेड लगा दिए जाते हैं, लोगों को लेबर्स को जो है ना वहां पे लिटा दिया जाता है, और ये सब इनकी जानकारी में होता है, और ये उसको जो है ना अप्रूव कर देते हैं। अरे, जिस काउंसिल की बर्थ भी साली जो है ना भ्रष्टाचार में जुड़ी हुई हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? हमारी पूरी पूरी जो है ना मेडिकल फेटर्निटी, अनफॉर्चुनेटली, जहां जहां डॉक्टर को जो है ना भगवान तुल्य कहा जाता है, वहां ये भगवान तुल्य लोग राक्षस बने हुए हैं। ये हर चीज का व्यवसाय कर रहे हैं। ये जो दवा आपके पास 10 रुपए की आ सकती है, वो 1,000 में जो है ना बिक रही है। ये लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि ये कहेंगे कि हमें फलानी लैब से जो है ना का टेस्ट पे विश्वास नहीं है, आप तो इस लेबोरेटरी से टेस्ट कराइए क्योंकि उसका 60% कट इनको मिल रहा है। हम मानवता के किस दौर से गुजर रहे हैं?
एक्चुअली ये सारी चीजें स्तब्ध कर देने वाली है। मुझे लगता है कि यदि हम लोग मानवता को नहीं रखेंगे तो नेचर का कुचक्र जो है हम में से बहुत सारे लोगों को वाइप आउट कर देगा। यदि लेमन की 2 बूंदें या स्टेरॉइड की 2 टैबलेट जो कि 4 रुपए में आती हैं, वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, एलोपैथिकली भी और नॉन एलोपैथिकली भी। तो ये जो लाखों के ड्रामे हो रहे हैं, और ये यदि ड्रामे इसी तरीके से चलते रहेंगे तो जो मरने वाले हैं वो तो मरेंगे। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि हम दूसरे को सलाह देने की बजाय जो ये लेमन थेरापी है, व्हाई वी शुड नॉट डू ऑन आवरसेल्फ एंड शुड राइट आवर ओन एक्सपीरियंस। यदि परिवार में किसी का कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना का टेस्ट कराने के पहले वो लेमन थेरापी करके जाए, मैं 200% गारंटी से कहता हूं उसका जो है ना कोरोना टेस्ट नेगेटिव ही आएगा। डू फॉर योरसेल्फ, या टेस्ट कराने के बाद लेमन थेरापी करके दोबारा टेस्ट करा लीजिए। सर, हैव यू रिटन योर ब्लॉग और योर थिंग्स लाइक योर एक्सपीरियंस? आई हैव नॉट रिटन। देखिए, बेसिकली आई हैव जस्ट क्रिएटेड यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत सारे जो है ना फैन क्लब ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसको रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ब्लॉग भी कोई हमारे बिहाफ पे लिख रहा होगा, आई डोंट नो, बिकॉज माय टीम इज स्प्रेड ओवर द ऑल स्टेट एवरीवेयर एंड दे कीप ऑन डूइंग इट। एंड जो जब कोई मुझसे कहता है कि मुझे ये करना है तो मैं उसे कभी डिस्करेज नहीं करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको ऑडियो उसमें आप ले जाना चाहते हैं, आई इनकरेज यू, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल। हम एक दुष्टता के सिस्टम में जी रहे हैं जहां राष्ट्रीयता नहीं है, जहां चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, हर कोई उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है। ट्रू। मतलब हमारे आर वी रियली क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड ह्यूमन बीइंग? अरे जो एक पैकेट देता है वो पहले फोटो खिंचाने के चक्कर में रहता है। अरे भाई साहब, बिना फोटो खिंचाए पैकेट दे दो, क्या पब्लिसिटी करना चाहते हो? मतलब आपने 10 लोगों को 5 पैकेट बांटे हैं और उसके फोटो खींच के जो है ना उसको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली जो है ना नॉट प्रॉपर, इनह्यूमन। दैट्स वेरी राइट। Manish, do you want that we should disconnect and rejoin, or you can stop recording and you can do the second lot of recording? Manish, I think let's continue with that. So I think it was little a deviation. It was basically the session was arranged on your request, and I think it is a time that now you should be given the rein so that you can use this opportunity to know what you want to know. I really love the things actually, because I was surprised. I was at in the group. I was made join the group and that group. I think you were the star of that group, and I called you and I thought of again you can say me I'm an opportunist. You can easily say me an opportunist, and I am always an opportunist where there is a good things are there. So I thought of and I called you. I called you and I felt that I should talk to you about the podcast because you are on the YouTube channel and you are doing great things. I heard your means like a lot of bites of the other people also telling about you, like Commissioner Saab of Delhi's bite, and then UP's DGP of UP, and I heard all these bites, your talk also. So you're very, I found your personality, though you were in the bureaucracy and police department, you're very humanly connected. Your talk was very humanly connected, very what say आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें थी बहुत, मतलब it's not spirituality was there in your talk. So I thought of taking this opportunity to tell you about the podcast. And recently I started the company called Voice Villa.
And Voice Villa, by the way, I didn't share this that my podcasts are available on all the 15 international, national podcast channels, including Spotify, Google Podcast, iPodcast. And I'm working on that show. The show's name is Sunday with Sonali. Because in the COVID time, I found that there is a problem, which are the psychological issues as well. It is not only health issues, the psychological issues at home, the relationship status at the families are not good. So I thought of bringing those couple and talking to those couple, and my show is all about love, relationship, romance, sex, and sometimes beyond that. So this is the show on the podcast channels. This is my personal show, which is going on the podcast channels. And apart from that, Voice Villa is the thing which wants to work on uh, other people to come on these platforms, right? Because this is an effective way to communicate, effective way to spread our message. I can't say awareness, but I will definitely say that this will help to spread our words, what we want, because the communication is only key to reach the hearts. And from that era, if you think about the audio medium, हमारे यहाँ पर श्रवण क्रिया से ही सारी चीजें समझी जाती थी, सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी. इनफैक्ट हमारा जो ज्ञान मतलब हमारी जो सीखने की प्रक्रिया भी थी वो श्रवण क्रिया से थी, और ये हमारे ब्रेन को ज्यादा इफेक्ट करती है जब हम सुनते हैं. और अगर मैं टेक्नोलॉजिकली साइड से बात करूं तो डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, पॉडकास्ट विल बी द बूमिंग एरिया, जहां पर सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारे पास में स्क्रीन फटीग इतना होगा कि हम ज्यादा देखना ना पसंद करके हम सुनना पसंद करेंगे. इसीलिए देखिए एक एडवांटेज और बता दूं मैं जी. व्हेन यू आर इन ऑडियो एंड यू keep your audio on and you sleep, your subconscious mind will record it. Yes, exactly. So basically, even if you are running video, it can only hear audio because you are sleeping. So your only that listening part will be there, right? So that audio can be really very powerfully used during the Yog Nidra, even normal Nidra. Exactly. And basically your cell is having trillions time more memory than your brain, and your cell is recording each and everything which is happening around you, including how you are responding to it. Exactly. And this record is being not only kept with you, it is transmitted to your next generation also in the form of a DNA. So the DNA, cell, right? Absolutely. What memories comes, after generation after generation. Absolutely. So, and it's a very passive medium, sir, because you can work, you can do a lot of things. okay. Listen to the podcast, you can listen to the radio, you can listen to the audio medium. So I introduced myself along with Rizwan Sheikh, which is available in this meeting. He is a partner in this venture. Rizwan, are you there? Yes, I'm very much in. Sir, why don't you switch on your video also, Rizwan? Switch on your video. Give me a second, sir. Yeah. So so we started this venture. I would introduce Rizwan as well, because he is into outdoor media publicity. He was having his own agency. So I thought of taking this platform and taking this platform ahead and using this platform for many good reasons in an effective manner. So I want to give a proposal to you that you should start your podcast channels, because you have a lot of content to tell. Your experience, your vision to the society, what you are working, your social, your personal side. I think you must be having wonderful family life. I can see on your face, because the person is happy at family, who is very smiley. It's like the smile comes on his face. So here's Rizwan. Sir, good morning, sir.
हेलो रिजवान, हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू सर, प्लेजर जो है मीटिंग यू। या सर बहुत देर से मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था, मगर आप लोगों का डिस्कशन इतना इंटेंस चल रहा था और मुझे इतना सारा उसके अंदर से एक ज्ञान मिल रहा था। तो मैं 1 घंटा मतलब 58 मिनट से मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी और मतलब सुनता ही रह गया, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब समटाइम्स आई एम स्पीचलेस टू, कि जिस तरीके से आपने बताया जो सारी चीजें हैं, कैसा सिस्टम चल रहा है, हम कहाँ लाचार हो रहे हैं, कौन इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, कोविड का सिस्टम जो चल रहा है, मतलब इट सीम्स टू बी, मतलब ऐसा आप बोल रहे थे और मेरे जहन में स्टोरी चल रही थी। तो इट वाज वेरी, मतलब इट वाज सीरियस एंड नाइस टू हियरिंग यू। अभी मैं आपको देख रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू रिजवान, अभी थैंक तुम देख पहले से रहे थे, अब आप मतलब आप खुद को दिखा रहे हो। नहीं तो सीरियसली, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू गाइस, बिकॉज क्योंकि इतना अच्छा एक डिस्कशन चल रहा था, मैं बीच में कुछ बोलूं और आप लोगों का रिदम टूट जाए और जिसमें मेरा लॉस हो जाए, तो वो मैं नहीं चाह रहा था, है ना। सेम, मैं भी अपॉर्चुनिस्ट हूँ, व्हाई शुड आई मेक माय लॉस माई सेल्फ। देखिए, इसको अपॉर्चुनिस्ट नहीं कहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट जनरली इज यूज नेगेटिवली। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो ही इज नॉट द अपॉर्चुनिस्ट, ही इज ए कंट्रीब्यूटर। नहीं नहीं, मैं आपका सुनने के लिए, अगर आपका रिदम ब्रेक हो जाता, आप जिस फ्लो में समझा रहे थे जो चीजों को, जो आपने ऑब्जर्व किया, तो वो तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती ना। तो मतलब फिर वेरी आप ट्रू। और हम हमारे इंट्रोडक्शन में लग जाते हैं, तो मेरा लॉस हो जाता ना। आपके पास तो ज्ञान है, मुझे कैसे मिलता? थैंक यू, थैंक यू, सो सो स्वीट जी। ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से सोनाली जी, लेट्स हैव द कंक्लूडिंग पैरा कि हाउ वी आर टेकिंग दिस जर्नी अहेड एंड So, I just wanted, we will work out, sir, because कौन सी चीज, because you know, मैंने देखा है कि आपकी पर्सनालिटी में हमारा बहुत ही कम समय का, मतलब आई थिंक कल मैंने कॉल किया, यू आर सो इंस्टेंट, यू नो, और सो फास्ट डिसीजन मेकर। हमने शायद कल बात करी और आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। परसों नरसों कुछ मैं ग्रुप पे ज्वाइन हुई थी। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे अलग अलग कॉर्नर्स है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपकी तो पहली तो आपकी एक मूवमेंट है, जो मूवमेंट आप चला रहे हैं। दूसरी है कि आपकी पर्सनल साइड मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है। आप एक बहुत अच्छे, सॉरी मैं अपना मतलब अपनी आत्म अनुभूति बता रही हूँ जो बातों से मुझे लगा। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन हैं, तो वो भी एक साइड हो सकती है। और आपके जो अनुभव है, लाइफ के एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ क्राइम ऑल्सो, इन द फील्ड ऑफ पुलिसिंग ऑल्सो, सो वी विल डिस्कस इट ऑन अनदर चैट कि हम लोग किस चीज को आगे ले जाए, आपको किस डायरेक्शन में आपका पॉडकास्ट हो। क्योंकि पॉडकास्ट जैसे कि रिजवान ने अपने बातों से ही कहा है और ही एक्सप्लेन, एंड दिस इज द वे, दिस इज द रेडियो और ऑडियो इज एन थिएटर ऑफ माइंड। आप पिक्चर देखते हैं, जैसे ऑडियो की बात करें, आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो में उनके पिक्चर्स देखते हैं जो पिक्चर्स आप दिखाना चाहते हैं। ऑडियो में हमारा ब्रेन अपने पिक्चर्स क्रिएट करता है और वो आवाज को ये करता है, पिक्चराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऑडियो वीडियो म्यूट ये रखा होता, बंद रखा होता, और मैं बात करती, तो शायद आपके जहन में एक अधिक अच्छा पिक्चर मेरे लिए आता। तो यही चीज है कि थिएटर ऑफ माइंड गिव्स यू लॉट ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स एंड इमेजेस, so that way audio will work. So on a very serious note, we will work upon the particular thing which we want to project through the podcast, बिकॉज हमें थोड़ा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, होगा। हम और चीजों को थोड़ा माइन्यूटली ये करेंगे और एक विषय को लेकर हम बात करना शुरू करेंगे पॉडकास्ट को किस तरह से। और आपके कई लोगों से मुझे तो लगता है कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों के बाइट्स लिए, जैसे बाइट्स इन द सेंस आपके बारे में लोग बोलने वाले हैं। मैंने नहीं, कमिश्नर बेसिकली लेट मी टेल यू, ये क्राइम फ्री भारत इज ए बेसिकली कॉन्सेप्ट विच इज गिविंग 5 सर्टेनिटीज, और वो सर्टेनिटीज वो हैं जहाँ की हर व्यक्ति को उसका जो है ना जूता चुभ रहा है। सो एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग दोज प्रॉब्लम्स, राइट। सो पहली सर्टेनिटी है
reporting of legally acceptable FIR without visiting Thana. Okay. That is the first certainty. And आज आप थाने में जाते हैं तो आपकी कोई FIR लिखने के लिए ही तैयार नहीं है. Now that refusal has gone to almost 80-90%. And वो आपसे यदि कोई एप्लीकेशन भी लेता है तो एप्लीकेशन लेने का कोई प्रावधान नहीं है. That has to be converted into FIR. It cannot be जो है ना remain for inquiry and this and that. बिना देखिए पुलिस में दो तरीके के ही केस होते हैं. एक होता है जिसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा कहते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, राइट. कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो CRPC की धारा 154(1) के तहत लिखा जाता है, राइट. 154(1). तो और यदि मान लो जो बात कही जा रही है, जो रिपोर्ट की जा रही है, यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है, तो पुलिस का काम होता है कि उस रिपोर्ट को भी लिखेगा वो, और आपको वो रिपोर्ट लिख के देगा कि साहब जो आपने रिपोर्ट की है वो संज्ञेय अपराध ना होके असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. तो आपको न्यायालय जाने की सलाह दी जाती है. बिकॉज द थिंग्स विच आर नॉन कॉग्निजेबल दे कैन बी रिपोर्टेड टू द कोर्ट डायरेक्टली. उसमें पुलिस को संज्ञान लेने का और इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है. पुलिस यदि चाहे तो उसमें एक इस्तगासा बना के, दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट केस, एंड इट कैन सबमिट टू द मजिस्ट्रेट, एंड देन मजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस एज ए कंप्लेंट केस. जो कंप्लेंट केस है उसको हैंडल करने का जो है वो CRPC का 200 से 204 का जो सेक्शन है, दैट डील्स विद द कि कंप्लेंट केस को कैसे जो है कोर्ट हैंडल करेगा. तो जब हम सर्टेनिटी ऑफ कॉग्निजेंस की बात कर रहे हैं विदाउट विजिटिंग थाना, तो इट इज ए वेरी बिग फैसिलिटी. और ये सामान्य तौर पे क्वेश्चन ध्यान में जरूर आता है कि क्या ये सब जो है ना उन लोगों के पास होगा जिनके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, या जो कुछ हैव्स कैटेगरी में होते हैं. सो आई वांट टू से नहीं, इट इज इंटेंडेड फॉर द रूरल पॉपुलेशन, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जिनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है. उन केस में जो है ना द वॉलंटियर विल रीच आउट टू देम, right, and will register their FIR making use of their own mobile phone, on app, on portal, that way. लेकिन जब भी आप किसी चीज को कोई भी अच्छी चीज देने की कोशिश करते हो, हमारा भारतीयों का दिमाग हमेशा उल्टा चलता है. हम उसका दुरुपयोग करने की बात पहले सोचते हैं. जैसे हम मान लो हमने SC एक्ट या इवन लेडीज से रिलेटेड बहुत सारे इनेक्टमेंट आए हैं, तो एक जो है ना डरी का जो है ना केस हुआ, तो मालूम पड़ा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. सही भी है तो उसमें एक या दो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो पूरे खानदान का नाम लिख देते हैं. इवन रिश्तेदारों के भी नाम लिख देते हैं जो वहां है ही नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं है. तो आदमी जो है जो भी आपको सुविधा दी जाती है उसका दुरुपयोग करता है. RTI आई तो RTI के जो ना लोगों ने इंफॉर्मेशन लेके ब्लैकमेलिंग चालू कर दी. एंड आपने सुना होगा बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है. वो मर्डर जो है ना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो RTI एक्टिविस्ट है, उनका मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्लैकमेलर थे, और जिसके खिलाफ जिसको ब्लैकमेल कर रहे थे उसको लगा कि जितना ये पैसा मांग रहा है उससे कम पैसे में इसका मर्डर कराया जा सकता है. सो इवन जो है ना जो अपने आप को मसीहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मसीहा ना होके दे आर द ब्लैकमेलर. तो इसलिए क्राइम फ्री भारत जो है जब आपको FIR की गारंटी दे रहा है, उसी ब्रेथ में वो कह रहा है कि यदि आप गलत या फैब्रिकेटेड FIR करेंगे तो हम आपको 211, 182 IPC में प्रोसिक्यूट करेंगे, एंड वो भी सर्टेनिटी के साथ करेंगे. बिकॉज हम आपके हाथ में एक खुनखुना नहीं देना चाहते जिससे आप किसी को जो ना ब्लैकमेल करें, दुरुपयोग करें, किसी को तंग करें. ये आपके जेहन में नहीं आना चाहिए. इसमें हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं कि इसको 182 एंड 211 को संज्ञेय बनाया जाए, और इसमें जो पनिशमेंट है इट शुड बी द सेम एज ऑफ द फैब्रिकेटेड कंप्लेंट. तो यदि एज्यूम करिए कि आप एक मर्डर की यदि कंप्लेंट फैब्रिकेट करते हैं तो आपको जो है थ्योरेटिकली कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है इफ इट क्वालिफाइज फॉर दैट कैटेगरी. Unless we go that way, so this is the first certainty.
एंड सेकंड सर्टेनिटी इज द सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो जो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन क्राइम है, ये कोई आला अधिकारियों से हम नहीं कराना चाह रहे हैं। हमारा सबसे कम दिमागदार व्यक्ति जो है, हमारे ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो बड़ा से बड़ा धुरंधर जो है इन्वेस्टिगेटर नहीं कर सकता है, और उसके बैकएंड इंजन उसको वो सब सपोर्ट देंगे जो पुलिस के कभी रडार में भी नहीं आएगा। तो एविडेंस कहीं भी अवेलेबल है तो 91 सीआरपीसी के तहत उसको जो रिक्विजिशन करना है वो करेगा, सीसीटीवी से जानकारी लेना है वो ले लेगा, आईओटी डिवाइस से जानकारी लेना है वो ले लेगा, बैंक से ट्रांजेक्शन डिटेल ले लेगा, रिजर्वेशन ट्रांजेक्शन डिटेल ले लेगा। वो इतने चीजों को कैप्चर कर लेगा कि आप जो है इतना हैवी एविडेंस होगा कि आप बच के नहीं निकल सकते हैं, राइट। लेकिन यदि सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस इस पे यदि हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यदि ये 10% यदि केस रजिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब है इमीडिएटली 10 गुना अपराध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 10 गुना अपराध को हैंडल करने के लिए पुलिस कहाँ है आपके पास? तो क्राइम फ्री भारत इमीडिएटली सोच रहा है कि हम जो है पुलिस को डीबर्डन एंड डी स्ट्रेस करेंगे, और 90% जो है नॉन कोर एक्टिविटी विल गो टू द पब्लिक और टेक्नोलॉजी, और पब्लिक एंड टेक्नोलॉजी जो इस काम को करेगी उसको भारी रेवेन्यू दिया जाएगा। तो उस काम को वो ना करे, ये उसके वो that will be really making them very wealthy, because what we conceive that per capita income would be increasing minimum by 3 times। यदि वो 10 गुना भी बढ़ जाएगी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, और जीडीपी विल इंक्रीज मिनिमम बाय 5 टाइम्स। तो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। तो चूंकि पुलिस ऑलरेडी कार्य के बोझ से दबी हुई है, लिहाजा उसको डीबर्डनिंग एंड डी स्ट्रेस करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर जो है कई बार अपन कहते हैं कि साहब जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस से लीक हो जाती है, या डेलिबरेटली या फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन एंड व्हाटएवर बी द रीजन। सम टाइम आदमी को डर लगता है कि यदि मैं किसी पुलिस को कुछ बताऊं और हमारा नाम लीक हो जाएगा तो अपराधी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी। रॉ डाटा पुलिस के पास जाएगा ही नहीं, वो लीक किसको करेगा, राइट। सो रॉ डाटा विल बी गोइंग टू द डिजिटल चित्रगुप्त, जिसका नाम है, लीगल नाम है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1, विच इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस चित्रगुप्त में 2 बड़े प्रावधान किए गए हैं कि जो इनसाइडर है यदि वो भी उसका दुरुपयोग करेगा तो वो सर्टेनिटी के साथ जेल में चला जाएगा, और बैकएंड इंजन खुद रिपोर्ट कर देगा उसको एविडेंस के साथ, राइट। ऐसे ही जो है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, they cannot dare to really touch and go to the digital Chitragupta for very simple reason, because it will capture the identity of the intruder and it will capture the evidence also, and उसी certainty के साथ वो उसको prosecute कर देगा। जो भी साइबर क्रिमिनल है वो क्राइम इसलिए करता है क्योंकि वो उसको इजी मनी लगती है, उसे लगता है आसानी से मूर्ख बना के पैसा कमाया जा सकता है, और उस पैसे से वो अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकता है। ही कैन गो 5-star होटल और दिस दैट व्हाटएवर हिज पर्सपेक्टिव इज। तो द सेकंड चीज जो क्राइम फ्री भारत जो है दे रहा है, दैट इज राइट टू द प्राइवेसी टू द नॉर्मल सिटीजन इंक्लूडिंग क्रिमिनल। देन इट इज सेइंग कि हम जो है सभी ऑफेंसेस को डिटेक्ट करेंगे। तो एक आदमी जो है हमारे स्कैनर पे आया तो हम उसका जितना भी डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल है उससे हम उसको क्राइम से मैप करके हम उन क्राइम को भी पकड़ पाएंगे जो या तो उस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण ना मान के रिपोर्ट नहीं किए हैं, या उसने रिपोर्ट किए हैं लेकिन पुलिस ने नहीं लिखे हैं। एंड ऐसे केसेस में भी सर्टेनिटी के साथ डिटेक्शन होगा, तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनका डिटेक्शन होगा, और फिर कन्विक्शन भी होगा, और वो भी एकदम साधारण दर्जे के पुलिस ऑफिसर के द्वारा। वो भी 90% जो है द बर्डन विल बी शिफ्टेड टू द टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक।
तो उस पुलिस वाले के पास जो है he will be having a weekly off. He can enjoy and devote a quality time with his family, and at the same time he will have the credit of detecting 100% offenses, or not only detecting, he will have the credit of getting conviction in that offenses. And यदि गलत होगा तो सिस्टम पकड़ के जिसने गलत किया उसको प्रोसिक्यूट कर देगा. तो बेसिकली हम उसको कन्विक्शन भी नहीं कहेंगे, देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस. देन इसका जो तीसरा चरण है दैट इज द कि कोर्ट को जो है, पहले जैसे मान लो पहली सर्टेनिटी में हमने कहा कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर होगी. तीसरी सर्टेनिटी में हम कह रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल होगा. सो क्राइम फ्री भारत इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो कि आज के ट्रायल सिस्टम से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज्यादा इफिशिएंट होगा, और हम जो है ना केवल जो है ना कन्विक्शन कर पाएंगे, ना केवल न्याय डिलीवर कर पाएंगे, बल्कि जो है ये जो है ना बहुत हद तक जो है पब्लिक फ्रेंडली होगा. अभी जो है यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो वो कहता है रिजवान हाजिर हो, फिर ऐसा नहीं होगा. आपकी कन्वीनियंस विल आल्सो बी फैक्टर इन. और जो आज आप गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते बिकॉज यू फील कि देयर विल बी लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, सो इवन आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास मोबाइल या स्टैटिक यूनिट रहेगा जहां से आप बिना कोर्ट जाए यू वुड बी इन पोजीशन टू गिव योर विटनेस. एंड ये विटनेस जो है आज के जो कोर्ट में गवाही हो रही है इससे 100 टाइम्स सुपीरियर होगा, बिकॉज इट इज हैविंग द 3 प्रोटोकॉल. 1 प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल ऑफ आइडेंटिटी. तो सबसे पहले सिस्टम ये स्टैब्लिश करेगा कि ये वही गवाह है जिसकी गवाही होना है, कोई फर्जी दूसरा व्यक्ति तो गवाही नहीं दे रहा है. नंबर 1. नंबर 2, देन इसकी बैकएंड प्रोसेसेस विल इंश्योर कि आप किसी डर में तो नहीं है. तो दैट इज द सेकंड स्ट्रेटेजी. एंड द थर्ड स्ट्रेटेजी, जब आपकी गवाही होगी, और जहां गवाही होगी देयर विल बी लॉट मेनी कैमराज एंड लॉट मेनी सेंसर्स. वो आपके पर्सपायरेशन से लेके आपके टांगों को कांपने और उन चीजों को भी कैप्चर कर पाएंगे. ये सिस्टम जो है डिफेंस लॉयर जो आज अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है उसको भी रोक पाएगा, और इट विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस. और सबसे बड़ी बात है कि जो सीएफबी की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उससे जो जुडिशरी के सामने इस समय 3.19 करोड़ केसेस जो पेंडिंग हैं उन्हें हम 2 साल में डिसॉल्व कर पाएंगे, और आने वाले समय में हम 3 से 6 महीने में फाइनल वर्डिक्ट दे पाएंगे. दैट विल इंक्लूड इवन जो है इफ प्रेसिडेंट का जो है कि माफीनामा वाला पार्ट है दैट विल आल्सो बी कवर्ड. सो एवरीथिंग विल बी मूविंग एज पर द टाइम लाइन. तो जो कई बार जस्टिस के डिले होने के कारण हम लोग कानून हाथ में ले लेते हैं वो चीजें भी बंद हो जाएंगी. आपकी जितनी भी मोबोक्रेसी है, जितना भी मॉब लिंचिंग है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन. Frustration may be against the administration, may be against the police, may be against that so sum total, and they feel कि ये तो हमें अपने लेवल पे ही निपटाना पड़ेगा. Sometimes it may be even psychological also. फिर जो है चूंकि चित्रगुप्त जो है 137 करोड़ लोगों से और सैकड़ों जो है ना सीसीटीवी और आईओटी डिवाइसेस से उसको इनपुट जा रहे हैं, और चूंकि ये सीसीटीवी डिवाइसेस और आईओटी डिवाइसेस दे आर गोइंग टू क्रिएट ए हैवी रेवेन्यू फॉर द ऑनर. तो इनकी एकदम जो है ना ग्रोथ विल बी मिलियंस टाइम, बिकॉज वो आपके लिए ईएमआई बन जाएंगे. सो बेसिकली देयर विल बी हार्डली एनी कॉर्नर जहां से हम एविडेंस कैप्चर करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को अपने क्रिमिनल के बारे में हर चीज मालूम होगी कि वो कैसे चलता है, उसका 360 डिग्री जो है ना व्यू कैसा है, यदि उसने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी कब खरीदी है, यदि उसकी गाड़ी में डेंट लग गया है तो डेंट कब लगा है, इतनी तक इंफॉर्मेशन होगी. इट विल बी हैविंग योर फेस एक्सप्रेशन, कि जब आप खुश होते हैं तो आपका फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, जब आप वायलेंट होते हैं तो फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, जब आप क्राइम करने के लिए निकलेंगे तो डिजिटल चित्रगुप्त को मालूम होगा कि आप तुम क्राइम करने की नियत से निकल रहे हो और आपके साथ में ये हैं, ये गाड़ी है. और फिर क्राइम फ्री भारत की एक सोच है
एक कहावत है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। आपने सुना होगा विकास दुबे वाला केस, जिसमें कि यूपी में पुलिस वाले गए तो उसने 8 पुलिस वालों को गन डाउन कर दिया। तो क्राइम फ्री भारत का सोचना यह है कि हम कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे, मतलब सामान्यतः हम कुत्ते के उसके घर से या उसकी गली से नहीं पकड़ेंगे। सो क्राइम फ्री भारत विल डिसाइड कि हाउ टू इंटरवीन, वेयर टू इंटरवेन एंड व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ इंटरवेंशन, राइट? एंड विथ सर्टेनिटी जो क्रिमिनल ऑलरेडी रडार पे हैं हम उनको अपराध करने के पहले पकड़ पाएंगे। जहां प्रिपरेशन ऑफेंस होगी उसको प्रिपरेशन में बुक किया जाएगा, जहां अटेम्प्ट होगा वहां अटेम्प्ट में बुक किया जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो उसको प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट किया जाएगा। एंड आगे चल के भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा यदि क्राइम फ्री भारत ठीक ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है तो। अब फिर हमें हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूं कि ये बताइए, क्या ये 4 सर्टेनिटी से हम क्राइम फ्री भारत पैदा कर लेंगे? तो मेरा खुद का आंसर होता है कि नहीं, क्योंकि यदि हमारा पेट खाली होगा तो हम पेट भरने के लिए क्राइम करके जेल जाना पसंद करेंगे। यदि आदमी क्राइम इसलिए कर रहा है कि उसके को छत मिल जाएगी, उसको इलाज मिल जाएगा, उसको भोजन मिल जाएगा, तो ऐसे क्राइम को भगवान के अलावा और कोई नहीं रोक सकता है, राइट? तो जब चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम है कि तुम क्या पहन रहे हो, कैसा है कैसा नहीं है, तुम अपराध कमिट करने वाले हो, तो भाई अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए? सो द 5th सर्टेनिटी ऑफ क्राइम फ्री भारत इट सेज कि वी विल रिहैबिलिटेट क्रिमिनल विथ सर्टेनिटी। सो वी विल आइडेंटिफाई द स्किल सेट, वी विल आइडेंटिफाई skill gap, we will give the training, we will give the financial resources, if required we will give that state guarantee, and we will rehabilitate the person. and in future भारत में अपराधी बने रहने का ऑप्शन किसी के पास नहीं होगा। आपको एक अच्छा नागरिक जो है क्राइम फ्री भारत बना के ही मानेगा, और साथ में जो है वो इतना रेवेन्यू देगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम 3 गुने से ज्यादा बढ़ेगी। और संभवतः हमारे क्राइम फ्री भारत का एक ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, तो हम ढेर सारे एक्सपर्ट क्रिएट करेंगे, लॉयर्स क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम उनको पैसा बांट सके। एंड पुलिस वाले को स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक थिंग्स, स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट लीगल सपोर्ट, state of art, all kind of the support will be almost available on the real time basis, जहां पे conviction would be a certainty, prevention will be a certainty, and rehabilitation will be a certainty, with a lot of flow of money making everybody wealthy. and फिर जो है क्राइम फ्री भारत में कि अम्ब्रेला में 18 और भारत रखे गए हैं, जो कि भारत के किसी भी नागरिक को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं छोड़ेगा। भारत के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जो चाहे ट्रैक्टर हो चाहे ट्रॉली हो, बैक एंड इंजन विल क्रिएट हाउ दे कैन बी यूज 24 आवर इंटू 7। इमेजिन करिए व्हाट विल बी द डेवलपमेंट। 1 इंच जमीन जो है वो जो है खाली नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि हर्बल मेडिसिन हो या फ्रूट्स हो या हेल्दी ग्रेन हो, और जो चीज जहां पर पैदा होना चाहिए वहां पर वो पैदा की जाएगी, तो इट विल बी हैविंग अमृत लाइक प्रॉपर्टी। तो जो आपका खाना है अभी जो कि पॉइजनस हो गया है, आप देखिए जो आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1/3 ऑफ द मिल्क, 2/3 ऑफ द मिल्क इज ऑफ द केमिकल ऑरिजिन। यदि आप केमिकल ऑरिजिन के मिल्क को कंज्यूम लगातार 4 साल तक करते हैं, तो ऐसी रिसर्च है विच कहती है कि वो आपका जो है 87%, 13% तो अपनी इम्यूनिटी के कारण बच जाएंगे, लेकिन 80% ऑफ द पीपल दे विल बिकम कैंसरस। तो यदि क्राइम फ्री भारत जैसा सर्टेनिटी के साथ जो है ना काम करने वाला यदि हमने सिस्टम डेवलप नहीं किया, तो अभी हम कोरोना से डील कर रहे हैं, आगे वाले समय में हर घर में कई लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। क्या हम ऐसा भारत पैदा करना चाहते हैं? एक समय आ गया है कि लेस जो है
क्रिएट थिंग्स। हम कहना बंद कर दें लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट करें। तो हमारा 154 यूनिवर्सिटी से एमओयू है और बड़े तरीके से जो है ना, नाउ इवन फ्रीलांस स्टूडेंट्स दे आर आल्सो ज्वाइनिंग इन ए वेरी बिग वे, और उनको जो है ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट और मॉड्यूल दिए जा रहे हैं। एंड वी आर क्रिएटिंग अवर ओन टेक्नोलॉजी, वी आर क्रिएटिंग अवर ओन लॉ। जब ये हम सब बात कहते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, पीपल से इट इज टू गुड टू बी बिलीव टू बी ट्रू, नंबर वन। दूसरा कहते हैं कि हमारे राजनेता जो है वो इसे मंजूर नहीं करेंगे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भैया ये राजनेता जो है ना कौन है, इन्हें अच्छी चीज क्यों कबूल नहीं है, इन्हें राष्ट्रहित की चीजें क्यों कबूल नहीं होती हैं, इन्हें आपको कास्ट में बांटना, धर्म में बांटना, ये बांटना वो बांटना और किसी तरीके से अपना उल्लू सीधा करके सत्ता स्थापित करना, ये इतने ही है क्या? क्या एन केन प्रकरण सत्ता बना लेना ही इनका धर्म है? एज पर देयर ओन एडमिशन 43% जो है ना आवर पार्लियामेंटियन, दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड। और ये 43% तो तब है जब उनके अपराध रजिस्टर नहीं होते, क्योंकि वो अब बड़े हो गए हैं। यदि उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन होंगे तो शायद 80-90% के विरुद्ध क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि जहां 2004 के बाद जो है किसी को पूरी नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, वहां पे इनको एक दिन के लिए यदि विधायक या एमएलए या एमपी बन जाते हैं तो एक दिन के लिए भी बनेंगे तो इनको पेंशन मिलेगी। जब एक ब्यूरोक्रेट को पे कमीशन बैठता है, 5-5, 6-6 साल काम करता है, तब डिसाइड करता है कि आपको क्या सैलरी मिलना चाहिए। ये अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं बिना किसी अपोजिशन के कि साहब हमको क्या सैलरी मिलना चाहिए। फिर अपन ये बात करें कि ये जीतते कैसे हैं, तो आपने सैकड़ों केसेस में पकड़ा देखा है कि इनको पैसा बांटते हुए पकड़ा गया है, दारू बांटते पकड़ा गया है, साड़ी बांटते पकड़ा गया है। तो क्या ये सही मामले में हमारे प्रतिनिधि हैं? और फिर हम एक रिट वो भी ले आए हैं जिसमें कि क्या कहते हैं उसको, व्हिप। तो पार्टी व्हिप जारी करेगी तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात ही नहीं कह पा रहा है, वो तो पार्टी का माउथपीस हो गया। तो क्या सच में ये डेमोक्रेसी है? सो बाय द प्रोसेस ऑफ देयर इलेक्शन, बाय द प्रोसेस द वे दे आर फंक्शनिंग, दे आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव। सो आर बी इन डेमोक्रेसी? मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। नाउ वी आर नॉट इन ए डेमोक्रेसी, वी आर इन पॉलिटिकोक्रेसी। और इसकी डेफिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन, बाय द पॉलिटिशियन, फॉर द पॉलिटिशियंस। जनता तो उससे गायब है। हम तो सिर्फ जो है ना एक ड्रामा देखने के आदी हो गए हैं। क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता है। यदि कोरोना जैसी चीज, क्या लेमन से 2 ड्रॉप से यदि हम कम्युनिटी स्प्रेड से लेके हर चीज जो है ना यदि कंट्रोल कर सकते हैं, तो व्हाई देयर इज अ लॉकडाउन? Why the people are dying because they are not getting bed? Why the people are dying because they are not getting oxygen? Why this remdesivir kind of the phenomena hypothesis has been created when there is no proven utility of this medicine? हम कब तक जो है ना इस चुंगल में फंसे रहेंगे? इसलिए क्राइम फ्री भारत कहता है कि अब समय आ गया है, ये महाभारत है, हे पात उठो, गांडीव उठाओ। ये महाभारत है, इसे लड़ना ही होगा। और ये महाभारत अलग तरीके का महाभारत होगा। ये महाभारत जो है शंखनाद से जीता जाएगा। और वो शंख जो है तो है नहीं, तो थाली रूपी शंख बजा के जीता जाएगा। और इसके लिए आवश्यकता है कि बहुत जल्दी, चाहे आपका ऑडियो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वीडियो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे जो है ना माउथ पीस हो, चाहे सोशल मीडिया हो, we must reach out to the each and every citizen of the country and we must show, दीप जला के हमें उनकी आशाओं को जगाना होगा और थाली बजाकर हमें शंखनाद करना होगा। और एक समय आ गया है कि हम जो है एक अपराध मुक्त भारत बनाएं, ये बहुत आवश्यक है। क्या कहना है सोनाली जी आपको?
So you took me to that wonderful Bharat. So I was very happy. नहीं, आपको I was उसमें कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम काल्पनिक है, उसकी चीज जो है ना कोई काल्पनिक तो रियलिस्टिक नहीं नहीं है? लगा सर, काल्पनिक नहीं लगा मुझे कोई चीज। और मुझे जैसे कि कहा मैंने शुरुआती दौर में, कल्पना से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए ख्याली पुलाव बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपने भी कह रहे हैं। तो वो एक चीज है। लेकिन मुझे क्या लगता है, जैसे चित्रगुप्त जो आपने कही है चीज, उसमें व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, राइट टू हैव प्राइवेसी, वो तो कहीं प्रॉब्लम में नहीं आएगी क्या? वो तो उल्टा राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। चित्रगुप्त को आप जानते हैं? हु इज द चित्रगुप्त? हाँ, मतलब वो तो मुझे पता है, वो वाला पता है, ऊपर वाला जो हाँ, तो यमदूत का ये सब पुत्र चिट्ठा चित्रगुप्त उसी को लिखता रिप्रेजेंट था। कर रहा है। तो जब आप हाँ, मरते हैं तो आपके वीडियो आपको दिखाते हैं, आपके फैमिली मेंबर को, आपके पड़ोसी को दिखाते हैं क्या? नहीं। So the Chitragupta has been very selectively chosen to guarantee the right to privacy, and that's why the data is not going to the police. And that this जो नेशनल अथॉरिटी है, इसमें कोई इंसाइडर जो है उस डाटा का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो बैकएंड इंजन खुद आइडेंटिफाई करके उसके एफआईआर भी कर देगा और उसको जेल भी भिजवा देगा। तो ये So, सर एग्जीक्यूशन लेवल पे कब तक आने वाला है? जिस दिन जो है भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना इसको अडॉप्ट कर लेंगे, उस दिन आ जाएगा। इसलिए इसके लिए पहला रखा गया है कि हर कोई YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करे, जिससे उसके पीछे शक्ति दिखाई दे। दूसरा हमारा कहना है कि आप में से हर कोई अपना 2-2 मिनट का वीडियो बनाए, जैसे कि आपने कहा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने बनाया है, डीजीपी यूपी ने बनाया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया है। तो हमारी अपेक्षा है कि हमारे पूरे 137 करोड़ लोग हमारे एम्बेसडर होंगे, राइट? तो आप में से हर कोई इसको समझे और अपना वीडियो अपील बनाए, जिसके इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे उसको रीच आउट करने में बहुत देरी नहीं लगेगी। सो आई रिक्वेस्ट दैट आप लोग टू बिगिन विथ अगले 24 घंटे में आप लोग अपना जो है ना वीडियो बनाइए एंड बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्राइम फ्री भारत। दैट इज सेकंड। थर्ड जो है, जैसा आपने कहा है कि कब तक होगा, तो ये 3 से 6 महीने में हो सकता है, यदि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है ना इसको यदि अप्रूव कर देते हैं। हमने जो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किए उसको पढ़िए, हमने उसमें कहा है कि उसके लिए जरूरत होगी एक नेशनल अथॉरिटी, नॉट नेशनल अथॉरिटी तो कोई बनाना ही बनाना होगी, एक नेशनल पुलिस एडवाइजर बनाया जाए फॉर क्राइम फ्री भारत एंड गिव हिम द कैबिनेट रैंक, जिससे कि जो है ना ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग उसको ब्रोबीट ना कर पाए। He should have the direct access to the honorable Amit Shah ji. He should have the direct access to the Pradhan Mantri, and that's how it can be created. जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, lot of technology has been created that can be created within 2 months or 3 months. That is not a big deal, because टेक्नोलॉजी जो क्राइम फ्री भारत की अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसे तो अपने वर्सन हर 3 महीने में रिवाइज करना पड़ेंगे, because there will be change of technology, change of algorithm. So crime free Bharat cannot afford to be static. It will be a dynamic concept, and it is making use of the 21 technologies. So it is a highly technology intensive initiative. Right. तो जहां हम पब्लिक के कहने के लिए बड़े नोशनल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लाइक डिजिटल चित्रगुप्त, दिस चित्रगुप्त, दैट चित्रगुप्त, देखा जाए तो इट इज ए हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, और इसमें सैकड़ों और हजारों बच्चे जो है ना बैकएंड पे काम कर रहे हैं। यदि इसमें सरकार की शक्ति लग जाएगी तो ये काम करने में 3 महीने से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। सो इट कुड बी डन दैट इजीली। और यदि क्राइम फ्री और मैथिली ग्रुप जैसे लगे रहेंगे तो हो सकता है कि 5-10 साल लग जाए तो भी ना हो। सो इसको, इसलिए हमने जो तीसरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करे और सप्ताह में एक बार क्राइम फ्री भारत को इंप्लीमेंट करने के लिए अपील दे, समझने के लिए अपील दे। क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट को बुला के जो है ना प्रेजेंटेशन देखा जाए, उनको क्या चाहिए ये समझाया जाए, और यदि वो नहीं कर पाते तो हम कह रहे हैं नेशनल ग्रुप को प्रोसिक्यूट भी कर दिया जाए। और यदि ये किया जा सकता है तो इससे एक दिन का भी विलंब क्यों होना चाहिए? जी,
Why should we delay? Sir, may I ask you that how are you reaching to the final authorities like PM and Amit Shah? मैंने तो Or जब how मैं are you making the campaign? देखिए जस्ट ए मिनट, मैं जो है यदा कदा खुद नरेंद्र मोदी ऐप पर जो है मन की बात में अपनी बात लिखता हूँ कि साहब ऐसा ऐसा करिए आप, ठीक है ना। हाँ, मैं जब डीजी पुलिस रिफॉर्म था तो मैंने डीओ लेटर लिखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कोई सिटिंग डीजी जो है ना अपने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे डीओ लेटर नहीं लिखता है। सो आई हैव रिटन ए डीओ लेटर कि साहब दिस इज माय कॉन्सेप्ट, आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, वी विल मेक दिस कंट्री क्राइम फ्री। दिस लेटर, डीओ लेटर आई हैव रिटन इन 2019 एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, ठीक है ना। देन जो है मैं हर वीडियो में बिना गलती किए हुए, बिना भूल किए हुए, आई ऑलवेज अपील टू माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, कि इट इज ए हाई टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, प्लीज वेक अप, इट इज ए वेक अप कॉल, लेट्स मेक आवर कंट्री क्राइम फ्री, एंड दिस क्राइम फ्री कंट्री विल नॉट ओनली द क्राइम फ्री, इट विल बिकम ए रूल कंप्लायंट सोसाइटी, इट विल बिकम ए पॉजिटिव एंड हैप्पी सोसाइटी, एंड लेटर ऑन क्राइम फ्री भारत का तो मानना ये है कि इट विल टेक अवे द वेरी नेगेटिविटी ऑफ योर एटीट्यूड। तो जो अपॉर्चुनिटी में जो आप जो है ना एक दुष्ट और राक्षस बन जाते हैं, हम में से कोई दुष्ट राक्षस नहीं बनेगा, हम में से कोई नरक में नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि नरक लायक काम करने के लिए जो है ना स्कोप ही नहीं बचेगा। तो सवाल ये है, तो इस तरीके से मैं एक बार फिर से कहूं क्या क्या स्ट्रेटेजी है। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि क्राइम फ्री भारत के पीछे जागरूकता लाई जाए, और जो यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन है दैट शुड बी नंबर वी शुड इंडिकेट इट्स स्ट्रेंथ। अभी बड़ी वो वाली बात है कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है इस चैनल को लॉन्च किए हुए, बिकॉज आई लॉन्च दिस चैनल एज ए सिटिंग डीजी, और अभी भी उसमें जो है 5000 से कम लोग हैं, टू बी प्रिसाइज सम 4591 के लगभग है। दिस संख्या जो है ना शुड इमीडिएटली गो इन करोर्स। Right. हमें फालतू So what के are the strategies to sir, because I am like now I will say I have unfolded my strategy. That is the number 1, subscribe Crime Free Bharat. Number 2, become the brand ambassador. Number 3, कि नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करिए, और हर कोई यदि उनसे प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना करने से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी जरूर प्रसन्न होंगे। That is the 3rd. अब जो है ना इसके आगे की स्ट्रेटेजी मैं चाहूंगा कि चूंकि कम्युनिकेशन इज योर फील्ड, यू शुड प्लान द स्ट्रेटेजी, यू शुड से कि साहब हम ये टीम बनाएंगे, ये टीम बनाएंगे, ये टीम बनाएंगे, ये टीम बनाएंगे, एंड दिस इज द वे वी विल टेक इट टू द पब्लिक, दिस इज द वे वी विल टेक इट टू द मिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज द वे वी विल टेक इट टू द पब्लिक डिबेट फोरम। Right. So, sir, that's what I was about to say, because you told, and I really mesmerized. It was, fantabulously designed strategies, and the vision and the motive is really appreciable. I have not having enough words to say that you might have enjoyed your retired life in a beautiful manner, having a lot of things in hand, but you have taken this things for the crime free Bharat, and you are doing wonderful job. Hats off to you and the vision you have for the next level thing. सर ने जो कहा है, सर के जो थॉट प्रोसेस है, मतलब इट्स अप टू द मार्क। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2050 की बात आप आज कर रहे हैं, मतलब मोर देन दैट, कि भाई 2050 या 2070 में जो भारत हो सकता है उसकी बात आप आज कर रहे हैं। And I think you are the कुछ लोग होते हैं, वो हम अक्सर कहते हैं कि हम क्या देकर जाएंगे, हम जॉब करते हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, बट आप जैसे लोग जो है ना सोसाइटी के लिए बहुत कुछ देकर जाते हैं, तो और एक दिशा निर्देशन करते हैं कि जिंदगी और समाज किस तरह से होना चाहिए। तो आई रियली हैट्स ऑफ टू योर विजन, व्हाट यू हैव, एंड आई वुड रियली लव टू जॉइन द थिंग्स हियर। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य, मेरे पुण्य ही होंगे कि आपसे मेरी इस तरह से मुलाकात हो रही है, और इस सारे प्रोसेस से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है।
यस, मैं आपको इसीलिए सवाल पूछ रही थी कि आपकी स्ट्रेटेजी वहां तक पहुंचने के लिए कैसी है, आप किस तरह से पहुंचना चाहते हैं, किस तरह से आप फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक आपकी बातों को ले जाएंगे, क्योंकि इन सारी बातों को ले जाने के लिए हमें लोगों का साथ और लोगों का हमारे साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम किस किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या क्या मंच हो सकते हैं जुड़ने के लिए, इफेक्टिव मंच क्या हो सकते हैं, और हम ऐसा कैसा हल्ला बोल कर सकते हैं जिससे जो कानों के पर्दे जो है हिले और सरकार तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी होता है जब कोई भी कैंपेन या कोई भी चीज हम अब कोई भी हमारा उद्देश्य हम लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है बहरी होती है इंडिया में। तो आपको बहरी सरकार को आपको अगर कुछ थाली बजवा के सुनाना है तो आपको बड़े जोर देकर उनके कानों तक जाके पर्दे हिले तब तक सुनाना पड़ेगा। तो हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं? आपने यूट्यूब चैनल तो कर लिया है, सब्सक्रिप्शन के लिए अवेयरनेस भी हो रहा है, आपके साथ बहुत बड़े और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि आप बहुत बड़े पोजीशन पे रहे हैं। तो हम सामान्य लोगों तक और कैसे पहुंचे, क्योंकि इंडिया का सर इतिहास ऐसा ही रहा है, जिसके साथ में सामान्य जनता जुड़ी है वो ही अग्रसर होकर बड़े लेवल तक पहुंच पाई है। तो हम सामान्यों तक कैसे पहुंच पाएंगे, हम बड़ों तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो हमारे पास हम स्ट्रेटेजी मेक, वी विल प्लान द स्ट्रेटेजी। YouTube channel you made, I'm insisting you to start your podcast channel on different platforms। अगर आपने 15 प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि मेरा पॉडकास्ट 15 प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा है, अब स्पॉटिफाई, गूगल, मतलब यानी कि मेरा जो चीज है वो हर जगह पे अवेलेबल होगा। जिनके पास में एंड्रॉइड फोन नहीं है वो भी किस तरह से सुन पाएंगे, इसकी भी हमें प्रावधान करना पड़ेगा। हमारा जो डेमोग्राफिक्स है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। हमारा मोटिव को फिर जो है, मोटिव हमारा तय है, लेकिन हमें वो मोटिव किस तरह से प्रोपोगेट करना चाहिए, उस प्रोपोगेट करने के स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करना पड़ेगा। और हमें अगले 6 महीने का पूरा कैलेंडर रेडी करना पड़ेगा और उसका कंटेंट रेडी करके फिर हम फोकस करेंगे कि हम मोस्टली उसे प्रोपोगेट करने में ज्यादा से ज्यादा हमारी एनर्जी और टाइम दें। यदि आपको ग्राह्य हो तो मैं आपको एक पद ऑफर करना चाहता हूँ। यू आर द जी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मीडिया एंड पब्लिसिटी। oh my goodness, oh my goodness। It will be my honor, sir. I will be more than happy to work with you, such a big personality. I think I'm blushing. I'm happy. So Thank you. yeah, thank you, sir. So that way, I think what we can do, I can give you the 3 days preparation time. And yeah, on Wednesday, we will be live on YouTube channel, and you have to unfold with the media strategy for crime-free Bharat. And I you think will, you're doing live it on YouTube channel, sir. Media strategy. Yeah. What is the I don't want that, sir. Okay, so then we can have the meeting like this, no issue. Yes, because strategy should not be open. The effect and the motive should be open. Strategy brings kind of a confidence. Builds kind of a confidence. So I am saying, देखो, basically आपके opponent, they will be always out to create confusion. तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत vocally clear नहीं है, तो lot many of them, they will get disheartened and they will not dare to come out. Otherwise वो कुछ ना कुछ confusion create करते रहेंगे। हाँ सर, लेकिन ये हमारे, माफ कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पेपर में जो है ना निकला कि एक टीचर को जो है ना वो गया, उसने जो है ना लेमन जूस को नाक में डाला और वो अस्पताल जाने के पहले मर गया है। तो मैंने इमीडिएटली कहा दिस इज ए कॉन्कॉक्टेड न्यूज, डेथ में बी देयर बट इट कैन नॉट बी ऑन अकाउंट ऑफ द लेमन। लेमन में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है कि वो आदमी मर जाए, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। सो इट इज ए कॉन्कॉक्टेड न्यूज। एंड उस रिपोर्टर को किसने अथॉरिटी दे दी कि वो कंक्लूसिवली उसको लेमन जो ना क्लोज कर वो कर दे? Whether he is having any postmortem report which is जो है ना corroborating with it। हालांकि हमारे दुष्ट लोग जो है वो साइंटिस्ट से भी और कहीं से भी उल्टे सीधे चीजें लिखवा के वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारा दंगल जो है वो शंखनाद की तरह होना चाहिए।
जैसे कि जो है ना महाभारत में हर चीज जो है ना दिन के उसमें होती थी, और जो है ना शाम को जब 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 संध्या हो जाती थी तो जो है ना युद्ध खत्म हो जाता था, एक दूसरे से लोग वहां मिलते भी थे, राइट। तो हम वैसा ही महाभारत करेंगे जिसमें कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी। Yes, sir. I'm not talking about the just a secrecy. minute, just a minute, just a minute. जी sir. यदि जो है we will be having the sensor what is happening in the environment, और यदि environment में कुछ अपन को ऐसा समझ में आया कि which is not going along well for the crime free Bharat, we will modify our strategy. Who says we will be with the static strategy? जब हम अपने जो टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल बना रहे हैं, they are not static, they will be evolving every quarter. Then जो है हमारी strategy, why should be a frozen strategy? It will be a dynamic strategy. But I honor कि we should not go in air till we develop the confidence about our own strategy, right? And then we can be selective what we would like to talk to the public and what we would not like to talk to the public. Right. दूसरी बात है कि जो so called the public, उनको एकेडमिक डिस्कशन में मजा आता है, करने में कम होता है। यहाँ की फीड वहां को भेज देंगे, फालतू की फीड भेज देंगे, लेकिन कोई अच्छी चीज जो है उस पर डिलीवरेशन करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके, उस पर अपने विचारों को सत्यापित करके वो काम करते नहीं बनता है। शायद हमने वो चरित्र और वो वैल्यू सिस्टम ही पैदा नहीं किया है, तो कहीं हमने अपने बातचीत से प्रभावित करके हमें वो वैल्यू सिस्टम और वो चरित्र डेवलप करना पड़ेगा। Do you agree with me? I agree, but मैं थोड़ा वैरी करती हूँ सर, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि strategies definitely अच्छा, okay, let's put this way, the strategy which will be developed with you, it will remain secretive. The strategy which will be developed with others, though you are open to the openness, उनको हम ओपन कर देंगे। जब आप सहमत हो जाएंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी को जब आप कहेंगे, बल्कि I will ask you to disclose your strategy, right? बट मैं आपको ये बताऊं, शंखनाद को इतना बड़ा कर दो कि महाभारत की जरूरत ना पड़े। यदि आपकी स्ट्रेटेजी माइंड ब्लोइंग होंगी और लोगों को मालूम है कि जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देन दे विल फॉल इन लाइन। लोग बाग जो है ना, लोग बाग लाइन लगा के आपके पीछे आएंगे वंस दे विल रियलाइज इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। पर जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मिस्टर किशोर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की स्ट्रेटेजीज प्लान करी थी। सो बीजेपी जीतने के बाद में किशोर की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया गया था, राइट? लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, व्हाई द स्ट्रेटेजी शुड बी ए कैमोफ्लेज, why it should be a mask, why it should be a projection? हमारा इंटेंट रियल और प्योर क्यों नहीं होना चाहिए? इंटेंट प्योर और we will not like to project anything which we don't intend to do. हम लोगों को गलत सब्जबाग नहीं दिखाएंगे। और इवन अभी जो हम कर रहे हैं, इवन दैट चित्रगुप्त, वी आर ऑलरेडी अंडर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। अभी हमारा जो है कल या परसों जो है, वी आर गोइंग टू हैव ए प्रेजेंटेशन ऑन app and our portal कि how we will be entertaining and helping in FIR। सर आपका ऐप है क्या? मैं ऐप वो डाउनलोड कर लेती हूँ ताकि नहीं, अभी देखो, there will be many app which will be integrated under one umbrella, because there will be app for the police officer, for investigator, there will be app for the expert, there will be app for the lawyer, and वो ऐप जो है ना खुद अपने आप को कॉन्फ़िगर करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो उसके जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, दे विल बी सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड टू टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट, दैट काइंड ऑफ द थिंग। सो वी आर अंडर, देखिए बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ए, though I am an engineer, I am having 13 degree to my credit. I am having that MBA in 3 disciplines, that is management, that is finance, marketing, and human resource management. I am LLB also. So I am having 13 degree to my credit. 13. But at the same time, I am not the person who will be writing code. तो उसके लिए हम बच्चों का यूज कर रहे हैं। यदि यही चीज सरकार की शक्ति आ जाएगी तो इसको करने के लिए एक इंडिया हैकाथॉन में एक जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करेंगे और सब चीज जमीन पे पैदा हो जाएगी। इट विल टेक 3 मंथ। अभी हम जो है
बिना संसाधनों के इतना सब कुछ कर पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, why the such person should not have the resources to do it? यदि इससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनको इस अच्छे देश को अच्छा बनना मंजूर नहीं हो रहा है? Why? यदि देखिए, नेताओं का और पार्टियों का जो है एक स्ट्रेटजी हो सकती है मूर्ख बनाने वाली, कि हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जो हम नहीं हैं. We would not like to project anything which we are not. We will not like to say anything which we don't intend to do. हमें किसी को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है. हाँ, And if we are कीजिएगा, हाँ. मैं मतलब अग्री कर, अब मैं डेफिनेटली वी विल गो लाइव, बट वी शुड डिजाइन आवर concrete plan. We should So you be can very say precise. you can say I will be secretive on this issue, right? So something Yeah. we will discuss in privacy, something we will Yes. disclose. So उससे देखिए, यदि आप पब्लिकली बात करते हैं, it will be assurance to the your own members. बाकी लोगों को भाड़ में जाने दिया जाए. जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें भरोसा होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, many of them will they like to suggest modification also. तो यदि उनकी सलाह में कोई अच्छी चीज समझ में आएगी, एंड आई एम वेरी प्रॉम्प्ट, जैसे मान लो मैंने कहा कि यू आर द नोडल ऑफिसर फॉर द वॉइस ब्रॉडकास्ट, राइट? अब बेसिकली मैं यदि डेवलप करूंगा तो आई विल बी टेकिंग फ्यू मंथ्स टू डू इट. यदि हम आपको नोडल ऑफिसर बना देंगे तो यू आर ऑलरेडी हैविंग नो हाउ, इट मे स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. So what I am saying, rather than doing everything ourselves, have the right kind of the people with us and give them that responsibility. हमारे एक साथी जो है, who is the president of गुजरात, उन्होंने कहा कि साहब जो है ना इक्वालिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो हमने कहा कि देखो भाई, I have dedicated in this 5 certainty. I am totally committed what you are saying. But please, I am giving you the responsibility. You become the head of this dimension. आप उस पर थिंकिंग करो, कम आउट विद द मॉडल, क्राइम फ्री भारत विल अडॉप्ट इट. बोले नहीं साहब, ये तो आप ही सोचिए. सो नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल. यदि मैं सभी लोगों की सभी चीज सोचूंगा तो जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं सोच पाऊंगा. व्हाट आई फील, जो मैं सोच रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आप सोच रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दैट मे नॉट फॉल इन द माई लाइन ऑफ प्रायोरिटी, राइट? सो आपकी चीज भी इंपॉर्टेंट है. सो वी आर सेइंग कि यू आर रिस्पॉन्सिबल. हमने आपको ही इंचार्ज बना दिया है. नाउ यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू टेक दैट चैलेंज. तो सोनाली जी, आई वुड लाइक कि यू टेक द चैलेंज, नंबर 1. एंड व्हेन यू सेड यू टेक द चैलेंज, you already have taken the challenge, sir. ओके, थैंक यू. व्हाट आई से कि मेक योर मीडिया टीम, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं 12-14 साल से, so you are having the personal rapport with them, so use their power also. देखिए, रामायण में और बहुत सारी जगह पे कहा गया है कि लोगों को बहुत शक्तियां प्राप्त थी. जैसे मान लो बाली को शक्ति थी कि उसके सामने जो आता था उसकी आधी ताकत उनको मिल जाती थी, राइट? सो व्हाट आई से कि मुझे तो डबल वैल्यू का है, जो मुझसे मिलता है वो मेरा ही हो जाता है. सो व्हाट आई फील कि लेट्स आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सा काम किया है. जैसे मान लो हम जॉब एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम मिल्क रिच भारत की बात कर रहे हैं, हनी रिच भारत की बात कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन रिच भारत की बात कर रहे हैं. नाउ इफ आई विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, आई हैव नॉट डेडिकेटेड माई लाइफ टू दिस. आई एम ए पुलिस ऑफिसर, आई एम ए टेक्नोक्रेट, आई हैव डन समथिंग इन दिस फील्ड. I have developed my own technologies also. When I was the IG operations, basically, I was the IG Jammu and Kashmir, IG operations Jammu and Kashmir. So हमने वहाँ पे मिलिटेंसी से लड़ने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की. We developed the spectrum of technology, and those were the hardware technology. अभी अपन बहुत सारी जो है ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं. So what I am saying कि हर फील्ड के स्टालवार्ड को पकड़ो. यदि जिसने एग्रीकल्चर में काम किया तो उसको पकड़ो, और ऐसे यदि 25 लोग हैं तो उनके लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है
जो उन्होंने मेहनत की है, लेट शुड नॉट गो वेस्ट। उनकी एनर्जी को जैसे मैग्नेट अलाइन करता है, उनको अलाइन कर दीजिए एंड अलाउ इट टू हैपन। अदरवाइज जो है, यदि उनको यदि 30 साल लगे हैं तो आप बहुत इफिशिएंट होंगे तो वो भी 5 साल तो लग जाएंगे। सो व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर 5 इयर्स? उनके 30 साल और ऐसे 33 साल वाले सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के उनकी एनर्जी को रियलाइन करके, एंड इफ वी कैन डू इट देन वी वुड बी इन पोजीशन टू डू इट इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। जैसे हमने अपने स्टेट प्रेसिडेंट गुजरात को कहा था, एंड I would have been happy you would have taken the challenge, because he is right, equality is very important, discrimination नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। So हाँ, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी पहला लाइन वही रहता है, बाय द वे, जब नोट आते हैं तो आई हैव सीन दैट। क्या रहता है? Add people with no discrimination and all. I have read that. उसके पीछे जानते हैं मेरा कारण क्या है? जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिनको आप अच्छा कह रहे हो, जिनको आप सफल कह रहे हो, उनकी सफलता कई बार खोखली होती है। सो आप ये देखो कि कुछ लोग, उनको आप जोड़ोगे वो 2 मिनट में भागेंगे। इसलिए उसमें हमने आगे वे बात भी कही है कि जो भाग रहा है उसे भागने दो, ईश्वर ने उसे वो रोल दिया ही नहीं है। वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा जब ईश्वर ने उस काम के लिए उसे चुना ही नहीं है? तो वो तो भागेगा ही। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप हर किसी को संभाव से मौका दो, जिसको भागना है उसे भागने दो। राइट। कम से कम प्रिसाइजली अगर हम अगर हम प्रिसाइजली बात करते हैं कि हम जो है ये मोटिव है जो आपने मुझे 4 या 5 हिस्सों में क्राइम फ्री भारत को जो बताया है कि उसका मोटिव क्या है और किस तरह से वो काम करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा because we will be working together, so I will like to tell about my working style is we will make the strategies. I'm very open for each and everybody's suggestion, which I definitely involved in the strategy planning. Because I was an RJ, so I always used to take the suggestion of my office boy. यार आज शो में क्या लेना चाहिए? And he used to tell sometimes the beautiful things, right? So every suggestion I count. Every suggestion is very important for me. But when there is a strategies that should be precise, that should be to the point, that should be very very targetive, right? Because हमारा टारगेट, हमारा मोटिव बहुत क्लियर है, तो उसी क्लियर मोटिव के साथ में हम अपनी स्ट्रेटेजीज भी प्लान करेंगे। क्योंकि मैं ऑडियो और पॉडकास्ट I declare you my strategist, so you please create a strategy on my behalf, which we will be refining in consultation with the other members. Thank you, sir. So precisely, and I will request you to kindly make your Sonali Media Group, so CFB support group, media, and then first collect the people, like-minded people, and then we can have a discussion with them, deliberation with them, meeting with them, and we can create the document. We can publish the document among that limited group. We can deliberate that how we can take it forward. That will be a very right way of doing it. और मुझे लगता है कि हाँ, हम हिस्सों में बांट देंगे हम अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से कि हम क्या क्या करेंगे, राइट? जैसे हम ऑडियो जैसे विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडियम को आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो अब यूज कर रहे हैं तो उसे सेकेंड लेवल पर आप कैसे लेकर जा सकते हैं? आप अदर बिकॉज आप नाउ यूट्यूब का जमाना उतना चला गया है, बहुत ही ये कहूँ तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन जब चैनल्स, जब यूट्यूबर्स आए थे 3-5 साल, तकरीबन 4 से 5 साल पहले, तो यूट्यूबर्स मेड देयर थिंग्स, द बैंग ऑन था, बूमिंग एरिया था। अब अगर बात करें तो दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उनका इस्तेमाल किस तरह से करा जा रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ पर कौन सा टारगेट ग्रुप अवेलेबल है, इन सारी चीजों पर बात होना बहुत जरूरी है और उसी तरह से स्ट्रेटेजीज भी बनाई जाती है। दूसरी चीज है कि आप ऑडियो मीडियम को किस लेवल पर लिवरेज
कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से उसको पैटर्न कर रहे हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। लोगों को जोड़ के बहुत बार हम कंफ्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट? क्योंकि वो अपनी अपनी, डेफिनेटली वी आर एसोसिएटिंग पीपल with the like-minded people in a different group, and we will definitely take their helps. But firstly, we will have our own meetings, that what are the things we will first research, that we have what we have done earlier, and what are, जैसे आपने बोला कहीं ना कहीं आपको खेद था कि इतने साल के पहले बनाया है और मैंने ये साल के बनाने के बाद में तकरीबन 4 से 5 हजार ही सब्सक्राइबर मुझे मिल पाए हैं। तो उसके रीजनिंग्स पर हमें काम करना पड़ेगा पहले, कि क्या रीजंस है। उसके बहुत ही टेक्निकल रीजंस होते हैं, बहुत बार कंटेंट वैल्यू रीजंस होते हैं, बहुत बार लाइक माइंडेड पीपल तक पहुंच पाना, उसकी जो सब्स्टिट्यूट और अंडरग्राउंड हम जो पब्लिसिटी करते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें वो पहले रीजनिंग्स को समझना पड़ेगा, वो रीजनिंग्स को जानना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। देन हम कौन कौन से नए मीडियम्स के थ्रू अपने एजेंडा को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो एजेंडास को प्रिसाइजली हमें वो चीजें करनी पड़ेगी। और प्रिसाइजली हमारे जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे जो एज ग्रुप्स है, हमारे जो लाइक माइंडेड पीपल है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, वहां तक देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, करण जौहर के फिल्म को भी मासेस मिलती है, और अगर अनुराग कश्यप के फिल्म को क्लासेस मिलता है, और हर फिल्म मेकर को उसका एक ऑडियंस ग्रुप मिलता ही मिलता है। तो कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जिस कंटेंट को उसका ऑडियंस ग्रुप और लिसनरशिप ना मिले, लेकिन सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वी विल मेक द स्ट्रेटेजीज फर्स्टली वी विल रिवाइज एंड रिव्यू द entire plan what you have done earlier. Then we will hop to the podcast things, then we hop to the new things, न्यू एरियाज, कि हम वहां पर किस तरह से करें। और हाँ, कंटेंट इज द किंग सर, content is the king. So content is the king, we always say, but the right content at the right place is the king. So how we are using that, because you know this statement you always might have heard in the era of the social and the digital media, that content is the king, but the content is not only the king. Content at right place at right time is the king, and the right people should be joined with that. So we will definitely also design the right platform, that we are going with the right people. So these things we will plan. I think we will have the second meeting precisely on these things, that what the strategies we have planned. So how much time you need to come out with, so that we can have a deliberation? I will take more than 2 days or 3 days to So should we fix the meeting for Wednesday or Thursday? no, sir, I was about to complete it. I was saying that next Saturday, Saturday, if it is possible, that we can have a meeting. Okay, fair enough. Yeah, 3 Fair days enough, I fair will enough. take for the reviving the things, and 3 days I will take for making the strategies, and the rest 1 day, then that day we will take the meeting, I Okay, suppose. fair enough, fair enough, fair enough. एक ऑलरेडी So- मीटिंग चल रही। So I feel कि now we can close this meeting. Yes, sir. Because it's already 2 hours, and I Yeah, think it is a time to really close it. आपके साथ वक्त का पता नहीं चला, ये बात तो बिल्कुल सच है। चलिए, हम लोग जो है जरूर कामयाब होंगे, और हम अपने देश को जो है we will change the face and fate of our country. हम किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद सूत्रधार बनेंगे उन परिवर्तनों के, जिन परिवर्तनों को हम जमीन पे देखना चाहते हैं। सर, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछे क्या हम? जी। एक तो आपका नाम, और आपके फैमिली में कोई राइटर रहा है क्या? मेरी फैमिली में मैथिली शरण गुप्ती खुद ही राइटर कहलाएंगे। Basically, basically we are from the same family, same community of Maithili Sharan Gupta. Okay. जी।